I'm audible, Shivangi madam? Yes, sir, you are audible. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार के लिए फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन हाइड्रोपोनिक्स, उसके लिए हमारे साथ आज बहुत महत्वपूर्ण स्पीकर जुड़े हुए हैं, मिस्टर विमल कौल साहब। पहले तो मैं उनका तहे दिल से इस इंडियन एसोसिएशन की ओर से स्वागत करता हूँ। I request all the participants to keep their microphone on mute. It's my humble request to all the participants to keep their microphone on mute. Shivangi madam, put all the participants on mute. Yeah, I have done that. आज हमारे साथ विमल कौल सर जुड़े हुए हैं on the topic of fundamentals of nutrient management in hydroponics. This is the 53rd webinar of Indian Nurserymen Association. आप सभी के लोगों के सहयोग से ये 53rd वेबिनार आज होने जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और इसका हम श्रेय पूरा हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वाईपी सिंह साहब उनको देते हैं, जिनके मार्गदर्शन से ये वेबिनार सीरीज चल रही है और अच्छे से हो रही है। उसी के साथ साथ हमारे मुकुल त्यागी साहब, सेक्रेटरी इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन, और पूरे टीम आने की जो इस वेबिनार के लिए बहुत मेहनत ले रही है और आगे सफल होने में आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो मैं आप सभी का इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन की ओर से स्वागत करता हूँ। और जो भी कुछ एक्टिविटीज इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन की से हो रही है उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी देने के लिए मैं हमारी शिवांगी मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन हम सभी को दे। तो ओवर टू यू शिवांगी मैडम। Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. The Indian Nurserymen Association was founded in the year 1987 by late Shri Arjun Das Agarwal ji. Before taking the presentation forward, I would like you to mention about the founder of the Indian Nurserymen Association. He founded the association in 1987 in Kaul, which is located in Haryana. Mr. Agarwal was the first president of INA. He presided the Nurserymen organization from 1987 till 1995. And at present, our president is Mr. YP Singh, and he is the 9th president of the organization. Mr. YP Singh took charge as the president of IAN in 2019, and after the elections, he shares long history of close association not only with the INA but with the first president, Mr. Agarwal. Mr. YP Singh has worked very closely with Mr. Agarwal during the founding years. Later, he served as the treasurer between 2006 to 2008, and further as the general secretary from 2008 till 2011. He has taken up many important big projects of the INA, and it became successful due to his interventions. The Indian Nurserymen Association is administered by its governing council. The current governing council was formed in the year 2019, and it is serving till date. The council has representation from across the country, such as Maharashtra, West Bengal, UP, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, and other states. The INA supports the cause of green and its caretakers. We have our green ambassadors. It collaborates with some nature enthusiasts to promote the cause of the green activities, and they are known as our green ambassadors. Established in 1987, the Indian Nurserymen Association has completed 33 years. It is a registered non-governmental organization and a lifetime committee member of Confederation of Indian Horticulture under the National Horticulture Board of India. Till now, we have more than 3,700 lifetime members. We are growing as a family with extended network of more than 2 lakh farmers, horticulture industry, including landscape and forest industry, plant breeders, distributors, interior and exterior landscapers. We also have florists, students, educators, researchers, and several other stakeholders.
The guiding principles of Indian Nurserymen Association says that the current governing council functions on the principle of influential advocacy, responsible education, fervent supporters of green and nursery business, collaboration across the industry. We understand that green industry is full of challenges and unforeseen circumstances. Thus, as a green organization, we try to help fellow members to overcome these difficulties. The organizational structure is governed by an elected board of governing council of 11 members. The GC makes the major decisions pertaining to the operation of the association. Our thematic areas are PR and advocacy, networking and partnerships, capacity building and study tour, events and exhibitions, research and development, publication and papers. During the COVID time, the Indian Nurserymen Association has taken several steps, which includes a conference call with the Government of India to discuss all the problems related to the nursery sector. It has been involved in advocacy with the National Horticulture Board as well. Indian market is recording exponential growth in the business of floriculture and live plants. So Mr. YP Singh, the president of INA, he has been tirelessly pushing the agenda for the upliftment of the nursery sector through the National Horticulture Board. He has submitted many proposals and demands in order to bring many financial schemes for the sector. INA's demands before the National Horticulture Board can be summarized as a national survey could be conducted by NHB for the identification of fruits, vegetables, and ornamental plants, nurseries, and allied landscape sector, development of research and development centers, reallotment of subsidies to nurseries and polyhouses. Mr. YP Singh represented association during the meeting for the proposal to form the Flowers and Plant Export Council of India. Indian Nurserymen Association is proud to share that it is an integral part of core team in the designing and implementation phase of the autonomous councils. The INA membership drive has now gone global. After reaching the global arena, it can be availed in countries like Japan, Vietnam, Lebanon, South Africa, Netherlands, Italy, Colombia, Bangladesh, and many more. The membership criteria and procedure is simple and easy. One can simply visit the website www.indiannurserymen.com and get the requisite information. Benefits of membership can be, as a member, you can gain access to log into our membership directory so that you can find other INA members. This offers opportunities for networking and career advancements at members-only events and chapter meetings. Then you can have free access to Nursery Today magazine that keeps you posted on nursery industry developments, as well as one can gain a lot of success in the field. The Nursery Today and its directory. The Indian Nurserymen Association is into the publication of its Nursery Today magazine, which is a monthly magazine, and its directory for horticulture industry, which is published every 3 years. Then we have our Seed for Future webinar series. We are hosting several webinars on various topics which are relevant for the nurseryman and its business. During the COVID-19 pandemic, we have successfully completed several webinars, and by now we have hosted more than 50 webinars. The Indian Nurserymen Association hosts HortiPro India, which is India's largest international exhibition on ornamental plant, nursery, landscape, floriculture, greenhouse, arboriculture, and allied industries. These are some of the pictures from the event. Thank you. Over to you, Sachin sir. Thank you very much, Shivangi, madam. Now today we have a very important topic for this webinar, that is fundamentals of nutrient management in hydroponics. And for this webinar, we are very grateful and thankful to our speaker, Mr. Vimal Kaul Saab. He has a wide experience, that is more than 40 years experience in the field, in this field. He's a Chief Technical Officer, Head of Hydroponics Division, AgriPlus Protected Cultivation Private Limited. Also, he's a PG DBM in Business Administration, Greenhouse Management and Hydroponics. Expert of hydroponics, aromatic plants, medicinal plants, and essential oil. So we are very fortunate today that we are with us, Mr. Kaul sir, and we are very anxious to know about the hydroponics and all the fertigation methods and all the technical know from him. So for a great personality, I welcome him
on behalf of Indian Nurserymen Association. I also thankful to him for sparing his valuable time for Indian Nurserymen Association. So I welcome him on behalf of Indian Nurserymen Association and I request him to give his presentation. So over to you, Vimal sir. Thank you, Sachin sir. Thanks everyone. Let me first of all formally thank Indian Nursery Association people who gave me this opportunity to be here on this platform and speak to so many participants. I'm not a scientist. I'm not an agriculturist, technically speaking. I'm a non-agriculturist person who is practicing commercial agriculture since 1979. So Shivangi, please let me share the screen. We can straightway move to our presentation and I will continue from that. Yeah, sure. You can start your presentation. Just I will interrupt you, sir. There are both type of audience and participant with us. They are willing to, some are willing to be listen in Hindi and some are in English. So if you mix both the language, I will be grateful for you. I will do that. I will make things very, very simple. Please, please, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will make so, things simple. Don't Hindi forget. and English, please. Right, I will do. मैं करता हूँ ऐसा ही करता हूँ. Sir, you can start it. I have given the question. So, my dear friends, once again, Shivangi madam, put all the participants on mute. Put all the participants on mute. Yes, sir. Is that okay now, Shivangi? Yeah, it's fine. Okay. Okay, Mr. Sachin just now introduced me. Let me give a formal introduction of myself. मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मेरा नाम विमल कौल है. मैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर एग्रीप्लास में काम करता हूं. उनका एक हाइड्रोपोनिक डिवीजन है जिसको मैं हेड करता हूं. I head that division. I have been into commercial agriculture for the last 40 years since 1979. 1979 से लेके आज तक जब भी मैंने कोई रोजी रोटी अपनी कमाई है तो आई हैव डन इट फ्रॉम कमर्शियल एग्रीकल्चर. मेरे पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है. मैंने बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर का कोई रिसर्च नहीं करा है. बट ऑल अलोंग आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग कमर्शियल एग्रीकल्चर और 40 साल इसमें होने से एक अच्छा एक्सपीरियंस डेवलप हो गया है. एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक एग्री एंटरप्रेन्योर हूँ. I am an agri entrepreneur and whatever I am going to share, that will be through the eye of an entrepreneur, not through the eye of a scientist. Scientifically, जब मैं मेरी presentation express करूँगा, तो मैं scientifically there can be small hiccups here and there, but through the eye of an entrepreneur, how an agri entrepreneur should look towards the fertigation in hydroponic or in soilless cultivation is my motive, and that is what I am going to express today. That's what I am going to tell you today. मेरा जो expertise है, my expertise is mostly in hydroponics, aromatic plants, medicinal plants, hops and essential oils. खुशबू वाले तेल, इनका मेरा experience रहा है पिछले 40 साल का. लेकिन of late, almost for the last 15 years, I am exclusively into greenhouse management and soilless cultivation and hydroponics. So formally, welcome you all to this presentation of mine, Fundamentals of Nutrient Management in Hydroponics and Soilless Media. When I was asked to select the topic for this webinar, I gave it a very good thought, very deep thought, and tried to find out where from we should start. And when it comes to nutrient management, it's such a vast subject that covering the complete topic in one single webinar is not possible. So I thought of following a process. मैंने ये कोशिश करी कि मैं वही process यहाँ पे follow करूँगा जिस process की वजह से मैंने hydroponics को सीखा है, मैंने hydroponics में fertigation को सीखा है. तो उसी की एक झलक आपको मेरी इस presentation में दिखेगी.
I will try to cover it by 3:10, 3:15, और फिर last के 15 to 20 minutes. I have a very humble request. Please ask me questions. जितने सवाल आप पूछ सकते हो मेरे से जरूर पूछिएगा, because that is the best way of learning things. And there is every possibility. मैं आपके शायद सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊँ. जितने भी I will try to reply everyone to best of my knowledge, to best of my capacity, but still asking questions and interchanging ideas and thoughts is best way of learning things. So let's move to the main presentation. I will start with a very small story. I'm an agri entrepreneur. That's why I believe in all these stories. I am not a scientist. I will quote you a small story that happened in 1972, long back, 1972. There was a young boy, a small kid. There was a small kid who once visited one of his relatives' house. This house was under construction and electric lines were laid in this house. And this young kid was shocked to see such a big bunch of wires hanging on the walls. ये बच्चा वहां उसको देख के घबरा गया, हैरान हो गया कि इतनी सारी इलेक्ट्रिक की तारें जो लटकी हुई हैं, इसका क्या होगा? What is going to happen with these wires? Or out of curiosity, he asked the electrician that, what are you going to do with these wires? इन wires के साथ आप क्या करने जा रहे हैं? और genuinely उस electrician ने उस बच्चे को जवाब दिया कि बेटा, you are a kid, you just cannot understand it. You mend your ways. आप जाइए अपना काम करिए, मेरे को मेरा काम करने दीजिए, आप ये नहीं समझेंगे. बच्चे को ये बात अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी, और उसने उसी टाइम ठान लिया कि मैं भी ये काम सीख के रहूंगा. वो घर चला गया, उसने इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने शुरू कर दिए, फ्यूज उड़ाता गया, लेकिन छोड़ा नहीं उसको. kept on focusing on it. And end of the day, कुछ समय के बाद एक दिन ऐसा आया कि इस बच्चे ने अपनी जिंदगी की जो पहली कमाई की वो उसने एज इलेक्ट्रिशियन करी. And this young kid was no other than the person who is speaking to you right now. It happened with me. मेरे को इलेक्ट्रिशियन ने बोला, मैं बिल्कुल यंग था, मेरे को इलेक्ट्रिशियन ने बोला, बेटा तुम नहीं समझ पाओगे ये कि बिजली के ये तार जो लटके इसका क्या होगा. तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई, क्यों नहीं समझूंगा? Why not? I went back to my home, focused on the electrical circuits, kept on drawing these on paper till the day I failed, but I kept on doing it till the end of the day. I became a trained electrician, and then first rupee that I made in my life was working as an electrician. So this is a story. What I want to tell you here, it is focusing, not letting the things go. इसकी वजह से सीख सकते हो. Recording in progress. Please mute. Then another story I would like to share. 2007 लड़का था, young boy, जिसने गहरा एक हाइड्रोपोनिक का बूथ सवार हो गया और उसने शुरू करा उसके काम को करना, और आता जाता कुछ नहीं था अबाउट द हाइड्रोपोनिक्स, बट उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि करना है. तो उसी सिलसिले में एक छोटा सा हाइड्रोपोनिक कहीं था, वो वहां चला गया देखने के लिए, और वहां पे उसको एक कंसल्टेंट भी मिला, एक हाई फ्लाइंग कंसल्टेंट. और इस लड़के ने उस कंसल्टेंट से पूछा कि भैया ये हाइड्रोपोनिक में फर्टिगेशन कैसे करते हो? हाउ डू यू डू फर्टिगेशन इन हाइड्रोपोनिक? एंड अगेन दिस हाई फ्लाइंग कंसल्टेंट टोल्ड हिम, मेंड योर वेज, यू डोंट हैव एन एग्रीकल्चर, तुमको एग्रीकल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं, कुछ मालूम नहीं, और तुम मेरे से पूछ रहे हो फर्टिगेशन के. अगेन दिस यंग मैन गॉट हर्ट. He said, am I not capable of doing it? Again, this young man was nobody else than me, myself. This happened with me only. I started a small hydroponic farm. पता कुछ नहीं था, लेकिन करने लग गया, और किसी से जब पूछने लगा तो उन्होंने मेरे को बोला, बेटा तुम्हारे बस की नहीं है. It struck my mind. I started working on it. क्यों नहीं कर सकते हैं? Why not? I kept on studying.
मटेरियल लेता गया, पढ़ता गया, नेट को खंगालता गया, बुक्स को लेता गया, हर एक चीज को करता गया, ट्रायल्स करता गया. एंड ऑफ द डे कुछ समय के बाद this happened. It was me, again, it was me who was told by someone that you cannot do it, but I didn't leave it there. वहां छोड़ा नहीं, पीछे लगा, फोकस करता गया. मेरे पास बहुत बड़ा कोई एजुकेशन का क्वालिफिकेशन नहीं था, but still I kept on working on it. Or end of the day, I developed my own fertigation formulation for each and every crop. फिर ये हुआ, ऐसा होने लग गया, then so many good things started happening in my career. Why I am telling you these two stories, these two experiences, why I am sharing with you? What is the idea? Idea is, the first thing, if you want to learn the art of hydroponics, the first thing, if you want to learn the art of fertigation and hydroponics, believe in yourself. Believe in yourself. आप मत सोचिए कि मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास कुछ है इसलिए मैं ये कर नहीं सकता. It is not true. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल साइंस है. ये वो साइंस है जो हम 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते हैं. थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है. इन दोनों सिचुएशंस में इलेक्ट्रिशियन या फर्टिगेशन को सीखना, what I did was अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल. जो फंडामेंटल चीजें होती हैं, जो बेसिक चीजें होती है, ABC जिसको हम बोलते हैं, उनको मैंने समझने की कोशिश करी. एंड दिस इज माय फर्स्ट लेसन टू यू. अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स. छोटी छोटी चीजों को समझ लीजिए, उनकी बारीकियों को समझ लीजिए. ये बहुत सिंपल चीज है. कोई हाई फाई इंग्लिश, कोई हाई फाई साइंस सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्टिगेशन के बारे में छोटी सी चीजों को सीखने की कोशिश करिए. एंड देन प्रैक्टिस. डोंट बी अफ्रेड. आप प्रैक्टिस करिए, सोच समझ के चीजों को प्रैक्टिस करिए, करते रहिए, वॉच करिए. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. डोंट लीव इट. If you are failing, it is good you are failing. Feeling means you are going in the right direction. Failing means your first step to success. इसलिए घबराइए मत इसको सीखने के लिए. मेंटली जब तक आप इस चीज को सीखने के लिए रेडी नहीं रहेंगे, तब तक आप इसको फिजिकली सीख नहीं पाएंगे. मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू लूज इन योर माइंड. जो आप अपने दिमाग में लूज करते हो ना, उसको जमीन पे आप सीख नहीं सकते. So this is my fundamental request to you, the people who are participating right now on this webinar, that believe in yourself. Hydroponics is not a rocket science. It is a very simple science. You need to focus. You need to try. You need to keep on trying. And I'm very sure all of us can learn the art. If I could learn it, anyone can. So practice, trials and errors. End of the day, this happened. जितनी भी पिक्स आप इस प्रेजेंटेशन में देखोगे, ये सारी पिक्स हमारे अपने फार्म्स की हैं. These have not been taken from internet or anywhere else. ये पिक्स ठीक हैं, ये गलत हैं, ये अच्छी हैं, ये बुरी हैं, ये हमारी हैं, ये मेरी हैं. And I am proud to be part of these pics. I am an entrepreneur. I am not afraid of my failures. मैं एक आर्मी की तरफ काम करता हूँ, एक आर्मी मैन की तरफ. जब वो यूनिफॉर्म डालता है ना, तो उसका एक टेम्पो ही अलग बन जाता है. Same way when you put this T-shirt on myself with the company's brochure over here, it gives me a lot of energy, a lot of confidence of doing things. And that is what you as an entrepreneur are supposed to do. Don't be afraid of your failures. ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही आप कोशिश करते रहे, लेकिन सिस्टमैटिकली करिए, फंडामेंटल्स को समझ के करिए. You will arrive at good decision. This happened, and trust me, this too happened. Now imagine a person who in 2007 was asked that you just cannot do it. वो 2020 में 20 क्रॉप्स की रेसिपीज खुद बनाता है. I can prepare
fertigation formulations for 20 crops myself without anybody's help. And it is very simple to do it. The only thing you need to do is be very sure in your mind. Have faith in your own self. Concentrate on fundamentals. Practice, keep on practicing. Monitoring kariye, or end of the day, I'm very sure you will succeed. And this is the process that we are going to follow in this presentation. और मैं ये presentation formally fundamentals से ही शुरू करूँगा. So please concentrate. And once we finish with the presentation, if you have any number of questions, do not hesitate. घबराइएगा मत सवाल पूछने से, एकदम से पूछिएगा. I will try to reply all your questions. So what are we going to learn here is that, just a minute. फंडामेंटली हमको क्या सीखना चाहिए? फर्स्ट टाइम एक अच्छी फर्टिगेशन का फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए फंडामेंटली हमारे पास में दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए. एक, हमारे पास में फर्टिलाइजर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. Unfortunately, most of the people in the country do not have good knowledge about the fertilizers. Let me tell you. I have never come across a person जिसको मैं कभी ऐसे किसी इंसान से नहीं मिल पाया मेरी जिंदगी में जिसके पास फर्टिलाइजर्स का बहुत अच्छा बेसिक का नॉलेज है. It is missing. We need to get this knowledge. और फिर ये एक फंडामेंटल नॉलेज हमको चाहिए. And then second, little of chemistry. थोड़ी केमिस्ट्री. कोई हाईटेक साइंस नहीं की जरूरत नहीं है. थोड़ी केमिस्ट्री और थोड़ा मैथ्स, कैलकुलेशन. एंड आई एम वेरी श्योर वी इंडियंस आर वेरी गुड इन मेकिंग कैलकुलेशन. थोड़ा सा आपको अपनी केमिस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए, वो भी 9th 10th की केमिस्ट्री. तो थोड़ा सा फर्टिलाइजर के जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके बारे में आपको सीखने की जरूरत है. जो मेरा काम है, आज मैं कोशिश करूंगा जितना भी मैं इसके बारे में आपको सिखा पाऊं. आई विल ट्राई टू डू दैट. होप यू विल एंजॉय द प्रेजेंटेशन. Now they say fertigation in hydroponics is of extreme importance. बोला जाता है ऐसा ही कि extreme important है, बहुत ज़्यादा important है. Hydroponic में fertigation is of very important, and that's true. That is true. क्यों fertigation बहुत ज़्यादा important है? क्योंकि हाइड्रोपोनिकली जब आप करते हो, मिट्टी के बगैर जब आप पौधे को ग्रो करते हो किसी और मीडिया में, तो उस मीडिया में कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होती है. वो मीडिया बिल्कुल इनर्ट होता है. उसमें जो आप दोगे वही प्लांट को मिलेगा. जब हम मिट्टी में खेती करते हैं तो मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी, उसमें कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं. जब हम अपना खाद, पानी या कुछ भी उसके अंदर डालते हैं तो उसकी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो उस खाद को, उस पानी को उस हिसाब से तैयार करती है कि पौधा उसको लेने लायक हो जाता है. This happens in soil. But when you are doing it without soil, there is no microbial activity. इस बैग में न कोई कीटाणु है, न कोई जीवाणु है, कुछ भी नहीं है. जैसी चीज आप दोगे वैसे ही वो प्लांट को मिलेगी. आपने अच्छी चीज दी तो वो अच्छी प्लांट को मिलेगी, आपने गलत चीज दी तो वो गलत चीज ही प्लांट को मिलेगी. That is why it is of extreme importance. 4 फैक्टर्स हैं जो हमको हमेशा याद रखनी चाहिए. Why is it important? इसके लिए 4 फैक्टर्स हैं जो हमको याद रखनी चाहिए. The first is plant growth is too heavy. जब हम सॉइललेस या हाइड्रोपोनिक में प्लांट्स को ग्रो करते हैं, प्लांट बहुत हेवीली ग्रो होता है, बहुत बड़ा अच्छी सेहत होती है उसकी. अब हेवी चीज को, एक अच्छी चीज को डेवलप करने के लिए उसको एक अच्छा खाना भी चाहिए. So when plant growth is heavy, you need to give proper fertigation to the plant. This is the first point why fertigation is important in hydroponics. Then comes the second point. Root volume is very small as compared to soil. Soil where the roots of plants can go to any extent. They can spread here and there. But when it comes to hydroponic, you are growing your plants in a container or in a channel. The root volume is very, very small, very, very small. So you need to maintain proper root volume. बहुत अच्छे से ट्रीट करना है उसको. वो सारी चीजें उतनी ही वॉल्यूम में देनी है जितने fertigation becomes very important. Then the micronutrient deficiencies. are
कांस्टेंट थ्रेट। आपको ये समझ लेना चाहिए, जितने भी आप में पार्टिसिपेंट्स में जो पढ़े लिखे, आई मीन नॉट पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, उनको ये बात का पूरा ज्ञान होगा कि मिट्टी के अंदर में व्हेन वी डू कल्टीवेशन देयर आर लॉट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को बहुत कम होती है, वो मिट्टी में होते हैं और वहां से वो प्लांट को मिल जाते हैं। लेकिन जब आप हाइड्रोपोनिकली किसी प्लांट को ग्रो करते हैं उसमें वो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होते, ये हमको देते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देना इज एन आर्ट, इट इज एन साइंस, इट्स एन आर्ट, इट्स एन साइंस। इसलिए कंटिन्यूअसली आपको जो सॉइललेस मीडिया है या हाइड्रोपोनिक्स है उसमें यू विल फाइंड एफिशिएंसीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑकरिंग। इसको हमको, इस थ्रेड को हमको वी नीड टू मीट इट आउट। एंड the fourth is unbalanced fertilizer formula creates more difficulties rather than deficiencies. जब हम अनाप शनाप खाद डाल देते हैं, विदाउट एनी कैलकुलेशन डाल देते हैं, जब हम विदाउट एनी नॉलेज के क्रॉप को खाद देते हैं तो वो अनबैलेंस्ड होता है। अनबैलेंस्ड जब हम फर्टिगेशन होता है उससे प्लांट के लिए सिर्फ डेफिशिएंसीज नहीं आती है, इट डजंट ओनली रिजल्ट इन डेफिशिएंसीज, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिफिकल्टीज फॉर प्लांट टू ग्रो व्हेन यू आर गिविंग अनबैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स। तो हमारे मन में आता है उठाया तो यूरिया डाल दिया, उठाया तो कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया, कितना डालना है, कैसे डालना है, मैं इतना क्यों डाल रहा हूँ, इसका कोई साइंस नहीं होता है हमारे को मालूम, तो हम डाल देते हैं तो हमको लगता है हमने डाल दिया प्लांट के उसमें रूट में, अब ये प्लांट ले लेगा, बट इट डज नॉट हैपन, इट डज नॉट हैपन दैट वे। ये एक बहुत बैलेंस तरीके से देना पड़ता है, और अगर आप इसको उस बैलेंस तरीके से देने में कामयाब हो गए then it will go to the plant. If you cannot give it in that balanced manner, it will not go to the plant at all. Remember, एक जो प्लांट होता है, any plant has water. It contains 90% water. एक प्लांट में 90% जो उसका वजन है वो पानी होता है। वो अगर आप उसको सुखाएंगे, if you make it dry, if you make it, ये 90% पानी चला जाएगा, it will be left with that 10% weight. और इस 10% weight में there are 17 essential nutrient elements. 17 nutrient essential elements are present in this just 10% of the plant. And there are certain non-essential जो जिनकी जरूरत नहीं होती है प्लांट को, वो भी कुछ अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो 17 essential elements हैं वो सिर्फ 10% प्लांट में होते हैं, बाकी 90% में पानी होता है। यहां से आपको एक लीड मिलेगा, प्लीज फोकस ऑन दिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां से आपको एक लीड मिलेगा कि हमको फर्टिगेशन कैसे करना चाहिए सॉइल मीडिया में, यहीं से आपको वो लीड मिलेगा। आई विल एक्सप्लेन इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स गो थ्रू दिस स्लाइड। ये प्लांट के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, दीज आर प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये पूरी लाइन, ये इनके सिंबल्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये और ये इनके क्लासिफिकेशन है। दीज आर फर्टिलाइजर, प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट, सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में। ये एक कॉमन सी चीज है। आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ यू नो इट। नाउ यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए। तो ये तीन जो आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 90% ऑफ दिस is taken by plant from water and air. ये उसको हवा से या पानी से मिलता है जो 90%। Now what is we left with? Nitrogen just 4% and rest of the items. अब यहां से आपको एक लीड मिलेगा कि 100% जो हमारा प्लांट है उसमें 90% पानी है, तो गया 90%। Now we are left with 10%. 10% में जस्ट 4% जो है वो नाइट्रोजन है। और उसके बाद आप देखिए, फास्फोरस इज 0.5%, पोटेशियम इज 4%, कैल्शियम इज 1%, मैग्नीशियम इज 0.1%। इमेजिन मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, जिंक 0.002%, 0.006%। अगर आप यहाँ पे इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कल को अगर आप अपना कोई फॉर्मुलेशन बनाते हो तो उसमें नाइट्रोजन मेरे को किस रेशो में देना चाहिए और जिंक किस रेशो में होना चाहिए।
ये आपको यहां से एक लीड मिल जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड इट. लेट मी रिपीट इट वंस अगेन. प्लांट में 90% पानी है गया, अब 10% बचा, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, और उस 10% में भी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू नाइट्रोजन की है वो सिर्फ 4 है, और बाकी ये छोटी छोटी क्वांटिटीज में ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं. इसलिए व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इन हाइड्रोपोनिक्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रेशोज हैं, ये रेशोज है जिन रेशोज के हिसाब से हमको न्यूट्रिएंट्स को देना चाहिए. हम अनाप शनाप नाइट्रोजन उठा के उसमें डाल दे, दैट शुड नॉट हैपन. अनाप शनाप जिंक डाल दे. आई हैव सीन पीपल एडिंग बोरान. अरे आधे ग्राम से क्या होगा, डाल दो 2-4 ग्राम. अरे जिंक 2 ग्राम से क्या होगा, 4 डाल दो 5-7 ग्राम. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यहां से लीड ले लीजिए कि किन रेशियोज में हमको वो देना चाहिए. थोड़ा सा टेक्निकल आपको लगे अभी, लेकिन आई कैन गारंटी यू वन थिंग, that जो हमारे आगे के स्लाइड्स हैं, I will make things more and more simple and more understandable for an average person. But थोड़ा सा जो मैथ्स है, थोड़ा जो साइंस है, उसको समझना बहुत जरूरी है. और ये इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, इन रेशियोज को आपको नोट करना चाहिए, आपको इन पे फोकस करना चाहिए. फिर मैं आपको बताऊं कि फर्टिगेशन या फर्टिलाइजर देना होता क्या है. What is it actually? Basically fertilizer जब हम plants को देते हैं, there are 2 ways of applying fertilizers to the plant. One is quantitative fertilization. Quantitative fertilization is quantity based. मतलब आपने एक defined quantity fertilizer की ली, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 5 किलो, और उसको प्लांट को दे दिया. This is quantity based. आप बोलते हो कितना देना है, मेरे को 2 किलो देना है, मेरे को 4 किलो देना है, मेरे को 6 किलो देना है, ऐसे करके. एंड दिस इज, ये जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है उसमें ऐसे ही फर्टिलाइजर्स को दिया जाता है. इट इज क्वांटिटी बेस्ड फर्टिगेशन. लेकिन सेकंड मेथड इज प्रोपोर्शनल फर्टिगेशन, जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड न्यूट्रिएंट्स देते हैं. कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड का मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन, एक जो हम खाद देंगे प्लांट को, उसमें नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, उसमें फास्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन क्या, उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन पे ध्यान देते हैं, और वी कैलकुलेट क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ क्वांटिटी, ये जो प्रोपोर्शनल फर्टिलाइजेशन है, इसमें परसेंटेज, इसमें कॉन्सेंट्रेशंस आर डिसाइडेड एंड देन वी कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. एंड जो क्वांटिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें we provide plants with a defined quantity of fertilizer, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 5 किलो. लेकिन यहाँ पे जो proportional fertilization है, इसमें नाइट्रोजन 230 ppm, फास्फोरस 80 ppm, साथ में हम पार्ट्स पर मिलियन ऐसे करके हम मेंशन करते हैं. और जो हमारा ये सॉइललेस कल्टीवेशन है, जो हमारा ये हाइड्रोपोनिक है, इसमें हमेशा जो फर्टिगेशन की जाती है, दैट इज डन ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन. ये जो प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन है, हाउ डज इट केम इनटू एग्जिस्टेंस? ये पहले नहीं होता था. पहले इस तरीके से फर्टिलाइजर्स नहीं अप्लाई किए जाते थे. these started happening with the introduction of drip irrigation and automation. जब हमने ड्रिप इरिगेशन को इंस्टॉल करा, इंट्रोड्यूस करा, जब हमने ऑटोमेशन जो उसमें लगता है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा, तो प्रोपोर्शनल फर्टिगेशन की जरूरत पड़ी. क्योंकि लोगों ने, पीपल थॉट कि अगर हमारे पास में वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है एंड इफ वी पुट इट इन वाटर, उसको उसमें डिसॉल्व करते हैं और फिर थ्रू ड्रिप हम उसको प्लांट को देते हैं, तो हमारा पानी भी जाएगा एंड आवर फर्टिलाइजर विल आल्सो गो. सो 2 in 1, saving of labor, saving of time. This is proportional fertigation. Applying fertilizers with irrigation is fertigation, and this fertigation is known as proportional fertigation, जिसमें के different nutrient की concentrations को maintain किया जाता है. Now it has become, अब ये एक standard practice. Now it has become a standard practice to apply water soluble fertilizers along with water to your crops, and you get best of the result. फट से फर्टिलाइजर पहुंच जाता है, बहुत छोटे से टाइम में फर्टिलाइजर डिलीवर हो जाता है प्लांट के पास में,
और इस प्रोसेस में फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड विद एवरी इरिगेशन साइकिल, जब भी हम पानी चलाते हैं उसके साथ में थोड़ा थोड़ा खाद देते हैं. थोड़ा मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. आगे जाके मैं ये कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट fertigation is of two types. One is quantitative, wherein we apply a standard quantity of fertilizer to our soil, to our plant, and another is proportional, wherein fertilizers are applied on the basis of concentration. पहले concentration देखते हैं, फिर calculation करके देखते हैं कितनी quantity हमको उसकी डालनी चाहिए. So the practice of applying fertilizers with each cycle of irrigation is called fertigation. मैं फिर एक बार आपको थोड़ा रिमाइंड करना चाहता हूं अबाउट द न्यूट्रिएंट्स. प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स ओब्टेन फ्रॉम एयर एंड वाटर, जो प्लांट पानी और हवा से लेता है. उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये CH और O, दीज आर द सिंबल. ये सिंबल है इसके, ये तीनों वो हवा और पानी से लेता है. उसके बाद में प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये ट्रेस एलिमेंट्स है. इनकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत कम होती है. इन चीजों की जो रिक्वायरमेंट है कंपैरेटिवली इज हायर, मच हायर, ज्यादा होती है. और इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज वेरी 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 स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल. सो मैं क्यों आपको फिर से ये बोल, आई नो यू मोस्ट ऑफ यू नो इट, but on my next slide I will tell you that knowing something very very important in relation to these nutrient elements. And what is that? Let's come to it. इसमें इस table पे you will see 4 columns. Here I have mentioned the name of the nutrient, then its symbol and ionic uptake. and फिर उस पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे इस टाइम, लेकिन नहीं है. हैव फेथ इन मी एंड देन हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ. इट इज नॉट. थोड़ा सा आप मन लगाएंगे, थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक. बट इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू डू soilless cultivation or if you want to do the hydroponic. याद रखिएगा कि नाइट्रोजन is taken up by the plant as NO3 or as NH4. There is no other form of nitrogen that is taken up by the plant. हर फर्टिलाइजर के अपने एक फॉर्म्स होते हैं. देखिए एयर है 78% नाइट्रोजन, इट इज N2, बट एयर से प्लांट नाइट्रोजन नहीं लेता है क्योंकि N2 is not the form of nitrogen that plants can take. Plants can only take NO3, that is nitrate form of nitrogen, and NH4, that is ammoniacal form of nitrogen. यही 2 फॉर्म का नाइट्रोजन जो है वो प्लांट लेते हैं. अगर आप किसी और फॉर्म में उसको देते हैं तो वो नहीं लेगा, या अगर वो पहले वो उसको कन्वर्ट करेगा, it will firstly get it converted into either NO3 or NH4 and then only it will be taken up with the plant. लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इन एलिमेंट्स के साथ में इनका कौन सा चार्ज है. ये नेगेटिवली चार्ज हैं कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी आपको पड़ेगी. नाइट्रोजन NO3 फॉर्म में होता है तो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, NH4 में होता है अमोनिकल फॉर्म में तो पॉजिटिवली चार्ज है. फॉस्फोरस इज ए नेगेटिवली चार्ज आयन. पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर ऑल पॉजिटिवली चार्ज आयंस. फिर सल्फर आता है. सल्फर का अपटेक, प्लांट्स डोंट टेक सल्फर एज सल्फर, दे टेक ऑलवेज SO4, सल्फेट फॉर्म में लेते हैं, एंड इट्स अ नेगेटिव आयन. बाकी क्लोरीन इज अ नेगेटिव आयन. इट्स नॉट एन प्लांट न्यूट्रिएंट, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लेता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिक है. तो आपको प्रिसाइसली ये याद रखना है कि फास्फोरस और सल्फर नेगेटिव आयंस हैं, रेस्ट ऑल और पॉजिटिव आयंस. ये आपको याद रखना पड़ेगा. और एक स्लाइड पे अब भी थोड़ी देर में आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग व्हाट फॉर्म, व्हाट चार्ज दीज आयंस आर कैरिंग, दिस न्यूट्रिएंट आयंस आर कैरिंग. इस चार्ज की एक रेलेवेंस है प्लांट के लिए. उस रेलेवेंस को मैं एक स्लाइड में आपको अच्छे से बताऊंगा. हमारे पास
जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके सोर्सेज हैं। नाइट्रोजन के लिए वी यूज कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम के लिए वी यूज पोटेशियम नाइट्रेट, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट, दीज आर ऑल सोर्सेज एंड आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ यू नो इट, एंड जिनको आइडिया नहीं है दे कैन फाइंड इट फ्रॉम एनीवेयर दैट दीज आर द सोर्सेज। ये हमारे सोर्सेज हैं जो मैंने इधर मेंशन करे हुए हैं, और ये हमारे न्यूट्रिएंट के एलिमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है। जैसे सल्फर की रिक्वायरमेंट प्लांट को है तो वी यूज मैग्नीशियम सल्फेट और वी कैन यूज पोटेशियम सल्फेट। इसके साथ में ये जो परसेंटेज लिखा है इट मींस मैग्नीशियम सल्फेट में सल्फर इज 13% एंड पोटेशियम सल्फेट में सल्फर इज 18%। ये परसेंटेजेस हर न्यूट्रिएंट फॉर्मूला बैग में लिखे होते हैं, इनको पढ़ना इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट कि कितना परसेंट उसके उसमें वो चीज है और क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता लग जाएगा। ये भी हमारे न्यूट्रिएंट है। आयरन के लिए वी यूज आयरन EDTA और वी यूज आयरन EDDH। कभी मौका मिला और किसी वेबिनार में आपसे मिलने का तो मैं इन चीजों को फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, बट on today as I told you we want to be fundamentally correct। मैं कुछ फंडामेंटल्स पे इस बार ज्यादा जोर दूंगा। तो ये आयरन के सोर्सेज हैं, ये मैग्नीज के सोर्सेज हैं, ये जिंक के सोर्सेज हैं, ये बोरॉन का सोर्स है। बोरॉन वी कैन यूज बोरिक एसिड और वी कैन यूज बोरेक्स। कॉपर के लिए वी कैन यूज कॉपर सल्फेट और कॉपर EDTA। मोलिब्डेनम के लिए वी कैन यूज अल्यूमिनियम मोलिब्डेनम और सोडियम मोलिब्डेनम। ये केमिस्ट्री है थोड़ी सी। इस एक पेज को इसका एक प्रिंट आउट भी अगर आप बनाएंगे और अपने घर पे रखेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपके लिए, आपको चीजों को समझने के लिए कि कोई ज्यादा नहीं, हर न्यूट्रिएंट का अपना एक एटॉमिक वेट होता है, एक उसका वजन है। आप मान लीजिए उसका एक अपना वजन है, वो उसका कितना वजन है उसको नोट करके रखना चाहिए। ये आपको फर्टिगेशन में बहुत हेल्प करेगा, बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। अनफॉर्चुनेटली इन सब चीजों पे हमारे देश में कहीं भी मैंने स्ट्रेस देखे हुए नहीं देखे। Nobody is putting focus on these things. What we put focus on is ये 19 है, ये 20 है, इसके 10 ग्राम लो, इसका 20 ग्राम लो। क्या साइंस है इसके पीछे में, उसके बारे में हम लोगों को न समझाते हैं। शायद इसलिए नहीं समझाते हैं कि शायद हमको खुद को मालूम नहीं, लेकिन that is no excuse. Ignorance is no excuse. हमको खुद को भी सीखना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। एक कंपैटिबिलिटी चार्ट भी हम आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा फर्टिलाइजर मिल सकता है आपस में। 2 फर्टिलाइजर कौन से मिल सकते हैं और कौन से फर्टिलाइजर आप मिल नहीं सकते हैं, उनको कभी भी मिलाने की कोशिश मत करिएगा। जैसे यहाँ पे आप रेड कॉर्नर पे देखो, कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट ये आपस में नहीं मिल सकते हैं। थंब रूल में आपको बताता हूं, कैल्शियम को मैग्नीशियम और फास्फोरस के साथ कभी भी ऐड मत करें, कभी भी मिक्स मत करें, कभी भी मिक्स मत करें। इट विल प्रेसिपिटेट एंड इट विल फॉर्म थर्ड सॉल्ट, और वो जो सॉल्ट वहां से बन के आएगा वो वाटर सॉल्युबल नहीं होएगा, उसकी अवेलेबिलिटी प्लांट को नहीं होएगी। सो गो थ्रू दिस compatibility chart and learn this art, that which salts we should mix and which salts we should not mix. That is of prime importance. And there is another term you need to know, that is plant antagonism. Plant antagonism होता क्या है? जैसे मैंने आपको बोला कि आप अनाप शनाप जब डालोगे ना तो आपको लगेगा मैंने ज्यादा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम गिविंग मोर न्यूट्रिएंट। लेकिन मोर न्यूट्रिएंट देने का मतलब ऐसा नहीं है कि प्लांट को वो सारा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। इसकी काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। जैसे अगर आपने नाइट्रोजन अननेसेसरली ज्यादा दे दिया तो पोटेशियम विल गेट लॉक, आपका पोटेशियम लॉक हो जाएगा, वो प्लांट को नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आप पोटेशियम अननेसेसरली ज्यादा देते हो तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, आपका नाइट्रोजन कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका लॉक हो जाएगा, वो रूट जोन में आपको आपने दिया लेकिन वो लॉक हो जाएगा रूट जोन में। इट विल नॉट बी टेकन अप बाय द प्लांट। सेम वे अगर सोडियम परसेंटेज बढ़ गया तो पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड बोरॉन विल गेट लॉक। आयरन आपने बढ़ा दिया तो मैग्नीज विल गेट लॉक, मैग्नीज आपने बढ़ा दिया तो आयरन विल गेट लॉक। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप इस फर्टिगेशन के बारे में कुछ भी कोई एक्सपेरिमेंट करने रहोगे तो लीड आप वहीं पहले वाले स्लाइड से लीजिए कि किस परसेंटेज में प्लांट के पास में ये होते हैं, और जब आप उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो अकॉर्डिंगली उन सारी चीजों को देखिए कि कहीं इसका रेशो बिगड़ तो नहीं रहा। अगर ये रेशो बिगड़ जाएगा तो आपका जो फर्टिगेशन का फॉर्मुलेशन है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा,
and it will get unbalanced. का मतलब है the availability to the plants will be zero. Even if you are giving it 10 times a day, still it won't be available to the plant. So make sure when you do even the trial, those ratios that I showed you on that plant, the mixture should be made as per the ratios available here. That is very, very important, and that's of prime importance. अब कॉमन जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, जितने भी आपके एक्सपीरियंस लोग होंगे वो इन फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं. There are two types of fertilizers. First, we call them graded fertilizers, and second category is non-graded. Graded में क्या होता है कि these are made by mixing two or more than two nutrient sources together. दो या दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट के सोर्सेज जो मैंने पीछे आपके स्लाइड पे बोले, उन सोर्सेज को मिक्स करके फर्टिलाइजर बनाया जाता है. उनको हम बोलते हैं ग्रेडेड फर्टिलाइजर. इसमें जैसे 19 we use commonly 20 28 0 24 668 ये NPK की concentrations हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं. These are all graded fertilizer. These are made by mixing two or more than two nutrient sources. तो ये एक सोर्स नहीं है, ये दो तीन सोर्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं. These are known as graded fertilizer. और ये जो है नॉन ग्रेडेड फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जो सिंगल सॉल्ट के, जिनमें एक पोटेशियम नाइट्रेट, इट्स अ सिंगल सॉल्ट, लेकिन इसमें पोटेशियम भी है और नाइट्रोजन भी है. दो इसमें प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन सॉल्ट ये सिंगल है. और प्लांट जो लेता है, प्लांट पोटेशियम नाइट्रेट को एज पोटेशियम नाइट्रेट नहीं लेता है, वो पोटेशियम को अलग लेता है और नाइट्रेट को अलग लेता है. तो ये सिंगल सॉल्ट में जितने भी हमारे पास में जैसे यूरिया है, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, so many, these are all single salt. These may contain more than one nutrient, but the salt is single. These are non-graded fertilizers and these are graded fertilizers. ये क्यों क्लासिफिकेशन जरूरी है आपके लिए जानना, अभी 2 मिनट में आपको मालूम पड़ जाएगा. देखिए ये फिर से क्लासिफिकेशन है नॉन ग्रेडेड और ग्रेडेड फर्टिलाइजर्स की. जैसे 19 और 20 और ये ग्रेडेड में आते हैं, सिंगल सॉल्ट वाले सब नॉन ग्रेडेड में आते हैं. दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ दीज. ये सॉल्ट हाइड्रोपोनिक में काम कैसे करते हैं. हाउ डू दीज सॉल्ट्स वर्क इन हाइड्रोपोनिक्स. क्या प्रोसेस है इसका, इन फर्टिलाइजर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है. इफ वी डोंट अंडरस्टैंड दैट मैकेनिज्म, हाउ कैन वी फॉलो द प्रोसेस. अगर हम उस मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे तो वो मैकेनिज्म को फॉलो कैसे करेंगे. अगर हम गाड़ी के मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे तो गाड़ी को चलाएंगे कैसे. Same way when it comes to fertigation in soilless media or hydroponics, we need to understand the system, the process, the procedure, how these water soluble fertilizers work. अब एक सोर्स हमारे पास में है कैल्शियम नाइट्रेट. दिस कैल्शियम नाइट्रेट एक हमारे पास सोर्स है. अगर हम इसको पानी में डालते हैं तो पहला जो पॉइंट है, आप जो भी फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे हाइड्रोपोनिक में या सॉइललेस में, these should be soluble in water. अगर ये वाटर सॉल्युबल नहीं है तो ये किसी भी काम के नहीं है आपके. यू शुड यूज ओनली एंड ओनली 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स. क्यों आई विल एक्सप्लेन. अब कैल्शियम नाइट्रेट ये वाटर सॉल्युबल है. जैसे आपने इसको पानी में डाल दिया, ये उसमें घुल गया, मिल गया. It got dissolved in the water, and after it gets dissolved, what will happen? It will break. It will break into calcium ions and it will break into nitrate ions. Plant calcium nitrate नहीं लेता है. Plant does not take calcium nitrate. It takes calcium separately. It takes nitrate separately. So it is of prime importance. बहुत जरूरी है कि हम ऐसा कैल्शियम नाइट्रेट यूज करें जो वाटर सॉल्युबल है. अगर वो वाटर सॉल्युबल नहीं है तो वो ब्रेक नहीं होएगा, और अगर वो ब्रेक नहीं होएगा वो प्लांट को अवेलेबल नहीं रहेगा. इसलिए ये ग्रेडेड और नॉन ग्रेडेड फर्टिलाइजर्स का जानना बड़ा जरूरी है. और यहाँ पे आपको मालूम लग जाएगा कि उन जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बात करी कि कैल्शियम नाइट्रेट व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर इट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम पॉजिटिव आयंस एंड नाइट्रेट नेगेटिव आयंस. ये ऐसे ब्रेक होता है.
और फिर इसका प्लांट के साथ में एक्सचेंज होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे समझिए पहला फंडामेंटल जो आपको देखना चाहिए कि whatever fertilizers you are using in hydroponic, you must use only those fertilizers which are soluble in water. अगर वो वाटर में soluble नहीं है तो उनको मत यूज करिए। रोज मेरे को बहुत सारे लोग फोन करते हैं, दे आस्क मी माय सजेशन टिप्स अबाउट फर्टिगेशन। मैं जब उनसे कुछ चीजें पूछता हूँ तो कभी कभी मेरे को बहुत हैरानगी होती है कि इग्नोरेंस कितना है लोगों के पास। उनकी गलती नहीं है, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक, बट आई एम पॉइंटिंग आउट द इग्नोरेंस। सपोज समबडी यूजिंग डीएपी को पानी में डाल दिया, किसी भी फर्टिलाइजर को उठा के पानी में डाल दिया, ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर अगर नहीं है तो ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। हाइड्रोपोनिक में मिट्टी में आप डाल दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, तो इंश्योर करिए कि यू आर ओनली यूजिंग वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स इन हाइड्रोपोनिक्स। मेक श्योर, बिकॉज अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे तो ये ब्रेक नहीं होंगे, और अगर ये ब्रेक नहीं होंगे तो दीज वोंट बी अवेलेबल टू द प्लांट फॉर अपटेक। So again, let me repeat, calcium nitrate is a source. It's a source of fertilizer. It's a source for calcium and nitrogen. It's a source for calcium and nitrogen. And when we add it in water, it gets dissolved and it breaks into calcium positive ions and nitrate negative ions. And then only it is taken up by the plant. उसके बाद ही प्लांट इसको ले सकता है। यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट प्लांट के पास नहीं जाएगा, लेकिन ये कैल्शियम जा सकता है, ये नाइट्रोजन जा सकता है, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है, ये उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में प्लांट इसको लेता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर यूजिंग ओनली एंड ओनली वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर। अब एक और चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जस्ट अ मिनट, कि हम लोगों को मैं जब हम की बात करता हूं तो आई इंक्लूड माई सेल्फ। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, आई एम नॉट, फॉर गॉड्स सेक, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग। What I am trying to do is analyzing the mistakes, analyzing the blunders that my dear growers commit 10 times a day. 10 times a day वो गलतियां करते हैं हाइड्रोपोनिक में, और हाइड्रोपोनिक के लिए वो इट इज पॉइजन अगर आप ऐसी गलतियां करोगे, यू आर बाउंड टू फेल। तो कैसे आपको सबसे पहले सीखना चाहिए Yes, anything for me? No, sir. Please go ahead. Okay, please ask people to mute their listening. Okay, now let us analyze a common fertilizer that we use is 19-19-90. Most misused fertilizer in my country. Most misused fertilizer in my country, and hydroponics at least. Most misused. Now I'll tell you how. Now, you ask anyone what is 19-19-90, he will ask it is 19% nitrogen, 19% phosphorus, 19% potassium. Fine, let us consider it. Okay, first thing you need to find is if you have purchased a bag of fertilizer, if you have purchased a bag of 25 kgs of fertilizer and it has a label mentioning N, P and K, you need to find इसमें N कितना है, इसमें phosphorus कितना है और इसमें potassium कितना है। ये आपको, ये सारा बैग NPK नहीं है, इसमें एक खास परसेंटेज डाली हुई है। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि इसमें N, P और K कितना है। हाउ टू कैलकुलेट दैट, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। 25 किलो का अगर आपका 25 किलो का बैग है, 25 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, दिस 19-19-19, दिस आर परसेंटेजेस, तो मल्टीप्लाई बाय 19% और 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.19 will come to 4.74 kgs. So again, P is 19%, K is 19%. So that, agar if we multiply same way 25 kgs by 19%, 25 kgs by 19, what will we come at? What we will arrive at? We'll arrive at that my bag of 25 kgs of 19 contains 4.74 kgs of nitrogen on.
then it contains 4.74 kgs of phosphorus only, and then it contains 4.74 kgs of potassium only. रेस्ट जितना भी बाकी का ये बनता है 12, मुश्किल से ये 13-14 किलो बनता है, बाकी का जो 10-12 किलो उसमें है, दैट इज ऑल इनर्ट मटेरियल। वो ऐसा मटेरियल उसमें डाल दिया गया है जो ये फॉर्मुलेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसका रोल नहीं है प्लांट के लिए, इट हैज नो, दिस इनर्ट मटेरियल हैज नो रोल टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, बट इट हैज बीन एडेड सिंपली टू क्रिएट दिस फॉर्मुलेशन। और इस इनर्ट मटेरियल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इनर्ट का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो प्लांट के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। जितना अच्छा इनर्ट मटेरियल होगा उतना अच्छा वो फर्टिलाइजर का क्वालिटी होगा। अगर बहुत बार मैंने लोगों को ये देखा कि देश से कि नहीं उनका 1990 इतने रुपए किलो है और इनका उससे कम है, लेट मी बाय द चीपर वन। That should not be the criteria. You should always buy good brands, good established brands. Because if any manufacturer, I don't say they do, but there can be, if any manufacturer compromises a bit on inert material, he will create, he will, add such an inert material which is not very good, which will interfere with the growth of the plant, and overall, instead of fertilizer helping you to grow a good, healthy plant, it will grow a weak plant. So don't compromise on the brands. Don't compromise on the brands. And when you have to calculate 19 on a particular bag, you must multiply total weight of that bag should be multiplied by the percentage that will arrive you, that will give you the amount of that particular nutrient present in the bag. This is the first lesson. This is the first lesson you need to know. And I'm very sure all those my nursery brothers who are into this business for some time now, they must be using 19. And when they edit, and particularly in seedlings, wherein they use coco peat and other things, it's in soilless media cultivation, you have to be doubly sure that when you apply 19, what concentrations you are applying and the quantities you have added to the water, does it amount to those concentrations? क्या मैं जो 1 ग्राम या 2 ग्राम 1 लीटर में डाल रहा हूँ, क्या ये वो कॉन्सेंट्रेशन बनाता है जिस कॉन्सेंट्रेशन में प्लांट इस न्यूट्रिएंट को लेता है? ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। तो इसलिए वेट को कैसे चेक करना है, उसमें कितना परसेंट फर्टिलाइजर है, दिस इज द वे। एंड देन कम्स द नेक्स्ट इज इस लेबल को अच्छे से एक्सप्लेन कर। लेबल इस लेबल को अच्छे से समझिए। ये एक प्रोडक्ट है, सिंपल। एग्रीकेयर इज अ कंपनी, reasonably good company. I am using their fertilizer. ये उनका एक प्रोडक्ट है which is 1990। जो फ्रंट वाला ये फ्रंट वाला लेबल है, ये उसका बैक वाला लेबल है। ये प्रोडक्ट मार्केट से मैंने लिया है, इट इज नॉट मैंने कहीं उससे लिया, ये सिंपल प्रोडक्ट है, फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है। लेट अस एनालाइज इट कि है क्या इसमें है, असली इसके अंदर है क्या, ये ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग जो आप इस पे देखोगे वो देखोगे कि इस पे फ्रंट लेबल पे लिखा रहता है 19 NPK ऐसा लिखा रहता है। और हम ये समझते हैं कि इसमें नाइट्रोजन 19% है, फास्फोरस 19% है और पोटेशियम इसमें 19% है। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन उसके बाद में आप इसकी, ये तो फ्रंट लेबल हो गया इसका जिसमें 19 लिखा है और उसमें हमने प्रिज्यूम कर लिया 19% P and K। नाउ लेट अस एनालाइज द बैक लेबल। इस पैक को अगर आप पीछे से देखेंगे तो वहां पर भी एक लेबल लगा रहता है। उस लेबल पे क्या लिखा है, ये वो बैक लेबल है, ये वो बैक लेबल है जो आप ये देख रहे हैं। व्हाट, इसको भी पढ़िए। इसमें लिखा है अमोनिकल नाइट्रोजन इज 4.5%, नाइट्रेट नाइट्रोजन इज 4% एंड एमाइड नाइट्रोजन इज 10.5%। ये तीनों मिलके 19% बनाता है। जो ये 19% नाइट्रोजन यहां बोल रहा है, पीछे वाली लेवल पे लिखा है अमोनिकल नाइट्रोजन 4.5% है, नाइट्रेट नाइट्रोजन 4% है, एमाइड नाइट्रोजन 10.5% है। एमाइड नाइट्रोजन इज यूरिया, एमाइड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज यूरिया। अब जिस प्रोडक्ट में यूरिया वाली आइटम ज्यादा होगी वो प्रोडक्ट आपका सस्ता होगा।
लेकिन क्या आपको हाइड्रोपोनिक में यूरिया को यूज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया आयन नहीं है, वाटर सॉल्युबल है, बट इट्स नॉट एन आयन, इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। जब आप यूरिया को पानी में डालोगे, उसके अंदर अगर आप ईसी मीटर अपना डालोगे तो आपको रीडिंग नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं लगेगा कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन का कितना है इसके अंदर। So technically speaking, urea is not a product meant for hydroponics. It's not a product meant for hydroponics. इसको अवॉइड करना चाहिए। अब इसकी बैक लेवल पे आपने देख लिया, हमने इसमें अमोनिकल नाइट्रोजन इज 4.5, नाइट्रेट नाइट्रोजन इज 4%, एमाइड नाइट्रोजन इज 10.5%, एंड देन इट सेज P2O5 इज 19%, नॉट P। यहाँ पे ये बोल रहा है P है 19%, लेकिन पीछे बैक लेवल पे बोल रहा है P2O5। दैट मीन्स ऑक्साइड फॉर्म में फास्फोरस है 19%, एंड सेम वे इट इज सेइंग K2O इज 19%, नॉट K। समझ लीजिए इस चीज को कि P2O5 19% है और K2O 19% है। तो अगर अब हमको N, P और K को देखना है कितना है उसके अंदर में, तो what we'll have to do, we need to convert P2O5 को P में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड K2O को K में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं इसके साथ में, ये हमको देखना है नहीं इसमें फास्फोरस कितना है, इसमें पोटेशियम कितना है, क्योंकि आपने अगर उधर फॉर्म देखा होगा जो प्लांट किस फॉर्म में आप टेक करते हैं, दे टेक पोटेशियम एज पोटेशियम, नॉट एज पोटेशियम ऑक्साइड। सो पोटेशियम ऑक्साइड को नहीं लेंगे, वो सिर्फ इसमें से पोटेशियम को लेंगे, और हमारे लिए जरूरी है कि K2O को K में कन्वर्ट करना और P2O को P में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल तरीका है, very simple way of converting it. It is just a matter of few seconds you can do it. And how we can do it is to convert, it's a shortcut. P2O5 to P, multiply by 0.44. And to convert K2O to K, multiply it by 0.83. तो यहाँ पे N तो नाइट्रोजन उन्हीं फॉर्म्स में है जिसमें प्लांट लेता है, फाइन। ये नाइट्रेट ओमोनिकल फॉर्म है, NH4 प्लांट लेता है, नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन है प्लांट लेता है, एमाइड फॉर्म में लेता है। तो ये नाइट्रोजन टोटल 19% प्लांट को अवेलेबल हो रहा है, बट इन 3 डिफरेंट फॉर्म। लेकिन P2O5 प्लांट डज नॉट टेक, वी हैव टू फाइंड आउट कि P कितना है। उसके लिए ये जो 19% है, कोई भी परसेंटेज हो उसको मल्टीप्लाई करिए बाय 0.44, और K2O में K देखने के लिए उसको मल्टीप्लाई करिए 0.83, तो यू विल अराइव एट 9। तो आपको ये पता लग जाएगा कि 19 एक्चुअली 19 नहीं है। तो फिर है क्या? ये है सिर्फ 19, 8 और 15। इट इज ओनली 19, 8 एंड 15। अब आप देखिए, जो फर्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको बोला कि एक रेशियोज में वो चीजों को लेता है, और रेशियोज को लेता है। अगर वो उन रेशियोज में लेता है तो इस फॉर्मुलेशन में ये 19 क्यों? तीनों सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन ये इसीलिए बनाया गया है कि जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअल जो इसमें है 19, 8 और 15 है, और ये उस रेशो में प्रेजेंट है जिस रेशो में वो प्लांट को एब्जॉर्ब करे। लेकिन जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब आप देखिए 8% है एक्चुअल इसमें P, और हम अगर इसको 19 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वी विल अराइव एट ए रॉन्ग कैलकुलेशन। ऐसे ही यहाँ पे 19 से कैलकुलेट करेंगे बट एक्चुअली इसके अंदर 15 है, तो वी विल अराइव एट ए रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन, जो हाइड्रोपोनिक के लिए बहुत 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 टफ है, बहुत डिफिकल्ट है। इट शुड नॉट बी डन। So reading the labels is very, very important, and ensuring that the items present, the nutrients present in this bag are strictly as per the requirement of the plant and are available in the same form that is available, that is taken up by the plant. You have to ensure. So conversions are very important. कैसे इस conversion पे? यहाँ पे मैंने आपको 0.44 बोल दिया, I have worked it out. 0.83 भी बोल दिया, I have worked it out. But how we have arrived at that also I will give an explanation. Now a beautiful analysis. हमारे पास NPK का एक कॉन्सेंट्रेशन आता है 19, जो भी आपने देखा। हमारे पास में एक आता है 20.
ये भी आता है, ये भी उन सारे एक्सपीरियंस लोगों ने देखा होगा. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन इट. Now, if 1919, 19 and 2020, there is a difference of one doesn't make much of a difference. एक से क्या, 1% कम हो या 1% ज्यादा, how does it matter? लेकिन if this 1% does not matter, why should company make 2 brands? Why should any fertilizer company make 2 brands? They can do well with 1 brand only. मैं इसलिए आपको ये पॉइंट बोलता हूं, जब लोगों को 19 नहीं मिलता है ना, तो उनको दुकानदार बोलते हैं 20 ले. दोनों में क्या फर्क है यार? एक का फर्क है, चल जाता. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम we abide by their instruction and we say okay fine, give us 20. लेकिन आप सब लोगों के लिए जानना जरूरी है कितना वास्ट डिफरेंस है दोनों में. And had this difference not been there, no company would have made 2 brands. Why should they make? अगर ये डिफरेंस नहीं होता. So now let us analyze the labels of 1919 and 2020. And what is it? 2020 में अगर आप बैक लेबल देखेंगे तो आप ये देखते हैं कि नाइट्रेट नाइट्रोजन इज 12.1%, अमोनिकल नाइट्रोजन इज 3%, एमाइड नाइट्रोजन इज 4.9%, P2O5 is 20%, K2O is 20%. Right? Now यहाँ पे हमको इसको P2O5 और K2O को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आफ्टर कन्वर्जन वी विल अराइव एट द एक्चुअल परसेंट. और 19 में आपने अभी देख ही लिया, 4.4% इज नाइट्रेट नाइट्रोजन, अमोनिकल नाइट्रोजन इज 4.5%, एमाइड नाइट्रोजन इज 10.5%, P2O5 19%, K2O 19%. Now what is the difference? ये दोनों का एनालिसिस तो हो गया. Now what is the difference? Now let us convert firstly. आपने अभी कन्वर्ट करा, मैंने आपको बोला कि 19 is actually 19.815, or to be accurate 19.836 and 15.77, but precisely you can take it as 19.8 and 15. This is actual formulation of 1919. Actual formulation of 1919 is 19.8 and 15, and actual formulation of 2020 is 28 and 16. 28 and 16. Now what is the big difference? Now what is the big difference? The big difference among the two is कि 2020 में नाइट्रेट नाइट्रोजन is 12.1% and 1990 में नाइट्रेट नाइट्रोजन is 4%. नाइट्रेट नाइट्रोजन is the most expensive नाइट्रोजन फॉर्म. इसलिए जिस भी प्रोडक्ट में नाइट्रेट नाइट्रोजन ज्यादा होगा वो एक्सपेंसिव होगा. और यही 12% नाइट्रेट नाइट्रोजन जो है यहाँ पे रिप्लेस किया गया है विद एमाइड नाइट्रोजन. यहाँ पे यूरिया से इसको रिप्लेस करा गया है. तो अगर मेरे को दोनों प्रोडक्ट्स को यूज करना है तो मैं सॉइल लेस में आई विल नॉट यूज 19 विद ओनली नाइट्रेट नाइट्रोजन 4%. नो, आई विल नॉट यूज. मैं इसको यूज नहीं करूंगा. मैं यूज करूंगा उस नाइट्रोजन को जो जिसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में, NO3 नेगेटिव नाइट्रोजन. क्यों? अगले स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. बट नाइट्रेट नाइट्रोजन इज द बेस्ट नाइट्रोजन. और क्यों है, हाइड्रोपोनिक में इसका क्या एप्लीकेशन है मैं आपको बताऊंगा. लेकिन यहाँ पे ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. मत समझिएगा 19 और 20 दोनों सेम चीजें हैं. जब भी आप किसी भी कंपनी का ये प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो उसके बैक लेबल को पढ़िए एंड मेक श्योर कि नाइट्रेट जो नाइट्रोजन कंटेंट इसके अंदर है वो किस फॉर्म में. अगर आपको सॉइल में यूज करना है यू कैन यूज ऑर्डिनरी एमाइड फॉर्म जिसमें बहुत ज्यादा है, यू कैन यूज दैट. लेकिन अगर आपको हाइड्रोपोनिक में यूज करना है तो उस प्रोडक्ट को यूज करिए जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में अवेलेबल है मैक्सिमम, एंड दैट इज 2020. सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन टू लेबल्स. ये मत समझिएगा 19 के बाद 20 आता है तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जमीन और आसमान का फर्क है दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर. ऐसे ही हम अगर 0050 पोटेशियम सल्फेट है या पोटेशियम नाइट्रेट है, उसकी भी बैक लेबल पे अगर आप जाएंगे तो उस पे भी लिखा है K2O as 50%, K2O as 50%. यहाँ पे K2O as 45%, 13045 पोटेशियम नाइट्रेट पे K2O as 45%. तो ये यहाँ पे ये जो K2O है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू K, और यहाँ पे जो 13045 में इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. और आफ्टर कन्वर्जन आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें एक्चुअली
एक्चुअली ये 0050 नहीं है, ये 0041 है, 0041 है, क्योंकि 50 है P2O K2O, और जब उसको K में कन्वर्ट करेंगे तो वो 41 ही आ जाएगा। और जब हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, अगर हम 50 के हिसाब से करेंगे तो जो हम क्वांटिटी डालेंगे वो क्वांटिटी कम होगी, कम कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा। सेम वे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 13045 में अगर आप कन्वर्जन करेंगे तो 13045 इज एक्चुअली 13037, पोटेशियम इज ओनली 37। और ये जानना हाइड्रोपोनिक्स में बहुत जरूरी है कि एक्चुअल एलिमेंटल परसेंटेज कितनी है प्रोडक्ट के अंदर, तभी जाके आप उसको पानी में डाल के उसका कॉन्सेंट्रेशन बना सकते हो। अगर आपको ये मालूम नहीं होगा तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन आप, जो क्वांटिटी आप डालोगे और कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करोगे वो रॉन्ग होगा, वो गलत होगा। थोड़ा सा मैं जो हमारे बच्चे यहाँ पे कोई यंगस्टर्स है जिसने केमिस्ट्री का थोड़ा ज्ञान होगा, तो कैसे ये P2O5 को कन्वर्ट करते हैं। P2O5 का मतलब होता है 2 P के मॉलिक्यूल हैं और 5 ऑक्सीजन के हैं। और वो जो मैंने एक स्लाइड पे आपको बोला था एटॉमिक वेट्स, वो यहाँ पे काम आते हैं हमारे। P2O5 का मतलब है फास्फोरस का जो एटॉमिक वेट है दैट इज 31, सो दिस इज 31 + 31। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है दैट इज 16 16 16, 5 बार हमने 16 लिया है। टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ P2O5 इज 142। It's very simple calculation. I hope mathematics and little of chemistry will do it for you. और 142 में ऑक्सीजन इज 80 एंड 142 में फास्फोरस इज 62। इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मॉलिक्यूलर वेट इज नाउ टोटल 142। आउट ऑफ 142 ऑक्सीजन इज 1 2 3 4 5, so 16 into 5 is 80. Oxygen is 80 and 1 and 2, this is 31 + 31, this is 62, P is 62। अगर अब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि P2O5 में P जो होता है वो 43% ही होता है। इसीलिए वहां पे जब आपने कैलकुलेशन करा वो कम हो गया, वो 50 के बदले 41 ही आ गया, 37 आ गया। So this is how it is to be calculated। आप इसको ध्यान से फोकस करिएगा। सवाल कोई होएगा अभी आप मेरे से पूछ लीजिए, अभी नहीं पूछ सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस ले लीजिए, मेरे को मेल कर दीजिए। आई एम रेडी टू रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चन। मेरे को फोन करिएगा, आई एम रेडी टू रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस इवन ऑन फोन in my private capacity also। But if you want to do hydroponics, if you want to learn the art of fertigation and hydroponics, you will have to learn all these things। बगैर ये सीखे हम बोले कि हम fertigation कर सकते हैं, it is not possible। And these are the fundamentals, ये basics हैं। This is shortcut। अगर आपको P को P2O5 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2.29, P2O5 को P में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई इट बाय 0.44, ऐसे PO4 को P में करना है 0.32 से मल्टीप्लाई करिए, H2PO4 को H3PO4 में करना है। तो ये सब कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, ये दिस इज शॉर्टकट टू कन्वर्जन। अगर आप देखोगे मेरी लेबल पे P2O5 लिखा है 20%, मेरे को उसको कन्वर्ट करना है इनटू P, तो मल्टीप्लाई करिएगा बाय 0.44, ये टेबल उसके लिए है। आई एम श्योर दैट Sachin sir and Shivangi will circulate this PPT with every participant। Maybe I don't know their policy, but still you want me to explain privately, I'm ready to do that for you। एक और स्लाइड मैंने deliberately इसमें डाली है। This is very very specially for nursery people who are into the nursery। आजकल नर्सरी में बहुत कॉमनली स्लो रिलीज फर्टिलाइजर और कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है। स्लो रिलीज ये ऐसे फर्टिलाइजर, दीज आर द फर्टिलाइजर व्हेन यू अप्लाई देम, ये इमीडिएटली प्लांट को अवेलेबल नहीं रहते हैं। दीज गेट अवेलेबल टू द प्लांट इन अ प्रोसेस ऑफ टाइम। इस कुछ समय लगता है और उस समय में उनको ये मिल जाते हैं इनको ये फर्टिलाइजर। ये दो टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं, स्लो रिलीज जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होते हैं और कंट्रोल रिलीज जो कंट्रोल के साथ रिलीज होते हैं। दोनों में फर्क है। उन नर्सरी ब्रदर्स के लिए जो अपनी सीडलिंग्स को या अपने पॉट प्लांट्स को इसमें बनाते हैं, कोकोपीट में बनाते हैं, दे शुड ओनली एंड ओनली यूज
controlled release fertilizers. They should only use controlled release. और जो मिट्टी में बनाते हैं उनको यूज करना चाहिए स्लो रिलीज. स्लो रिलीज यूज क्यों करना चाहिए मिट्टी में? क्योंकि इसको रिलीज करने के लिए माइक्रोबियल एक्टिविटी, उसमें जीवाणु और कीटाणु होने बहुत जरूरी है. अगर मिट्टी में वो चीजें प्रेजेंट हैं तो आपको स्लो रिलीज फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए. लेकिन अगर आप कोकोपीट में करते हैं तो आपको स्लो रिलीज नहीं करनी चाहिए यूज, आपको कंट्रोल्ड रिलीज करने चाहिए, जिनका डिसोल्यूशन आराम से होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीजें अवेलेबल रहती है प्लांट के लिए. तो आप मिट्टी में करते हैं तो स्लो रिलीज यूज करिए, अगर आप कोकोपीट में करते हैं तो कंट्रोल्ड रिलीज को यूज करिए, क्योंकि स्लो रिलीज को एक्टिवेट होने के लिए माइक्रोबियल एक्टिविटी इज नीडेड. कंट्रोल्ड रिलीज को यूज करने के लिए माइक्रोबियल एक्टिविटी इज नॉट नीडेड. थोड़ा सा मैं आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के बारे में बताना चाहूंगा कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो हमारे आते हैं 4 प्रकार के होते हैं. नाइट्रेट फॉर्म में आता है, अमोनिकल फॉर्म में आता है, अमोनिकल नाइट्रेट फॉर्म में आता है, और एमाइड फॉर्म में आता है. नाइट्रेट जैसे मैंने आपको बोला NO3, अमोनिकल एज आई टोल्ड यू NH4 पॉजिटिव नाइट्रोजन, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव नाइट्रोजन, अमोनिकल नाइट्रेट अगेन इट इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नाइट्रोजन, लेकिन बैंड है, इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल नाउ. एंड एमाइड इज यूरिया, it is again positive, it is in positive nitrogen, amide form of nitrogen, it's in positive nitrogen. क्या रेलेवेंस रहता है नाइट्रोजन? एज यू नो 4% जो रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर की, जो टोटल रिक्वायरमेंट 10 है उसमें 4 नाइट्रोजन ले लेता है, 4% नाइट्रोजन लेता है. इसलिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को अच्छे से आपको समझना चाहिए. ये इसके सोर्सेज है. नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन हमको ये पानी में एकदम से सॉल्युबल है. इट इज इमीडिएटली गेट्स सॉल्युबल एंड रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट. व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको नाइट्रेट फॉर्म का नाइट्रोजन ज्यादा यूज करना चाहिए, बिकॉज इट बिकम्स रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट. ये इनके अलग से फॉर्म्स हैं. और हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे को क्या रेशो में मिक्स करना चाहिए नाइट्रेट फर्टिलाइजर को, और हम दोनों फॉर्म यूज करना चाहिए. अमोनिकल फॉर्म एंड नाइट्रेट फॉर्म बोथ वी शुड यूज, बट वी शुड अराइव एट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. क्या रेशो में हमको उनको यूज करना चाहिए. थोड़ा सा ओवरशूट हो रहा है टाइम, बट लेट मी कंटिन्यू. सचिन सर, आई कैन कंटिन्यू? Yes sir, please continue sir. Okay. It's a very interesting and inspiring session. Please continue. Thank you so much. तो कैसे हमको, हाउ वी शुड अराइव एट, और क्या इंपॉर्टेंस है इस कॉम्बिनेशन की, इंपॉर्टेंस क्या है. यहाँ पे आप देख रहे हो स्लाइड पे एक बिल्ली का बच्चा है जिसको अपनी माँ मुंह में दबा के लेके जा रही है. अब आप इमेजिन करिए, अगर ये इसको जोर से दबाएगी तो बच्चा जख्मी हो जाएगा, और हल्के से दबाएगी तो बच्चा गिर जाएगा. तो एक ऐसा जोर चाहिए, एक ऐसा बराबर जोर चाहिए कि बच्चा भी ना गिरे और वो जख्म भी उसको ना लगे. ऐसे ही ये अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन यू नीड टू मिक्स प्रॉपरली. उसका क्या इंपॉर्टेंस है, विल कम टू दैट, बट आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसको हमको मिक्स करने की जरूरत है. एक ही फॉर्म में हमको नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए. क्या देना चाहिए हमको? टोटल नाइट्रोजन अगर हमको 100% जो हमको टोटल नाइट्रोजन देना है, इसमें एटलीस्ट 85% ऑफ नाइट्रोजन यू शुड ऑलवेज गिव इन नाइट्रेट फॉर्म. 85% you should give always in nitrate form, and ammonical form just 15%. just 15% हमको देना चाहिए. क्यों देना चाहिए आगे वाले स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि क्या होता है इससे. 85% से ज्यादा भी आप नाइट्रेट फॉर्म में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 95% तक आप नाइट्रेट फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन 5% अमोनिकल फॉर्म में आप कम से कम अपना नाइट्रोजन दे दीजिए. इस रेशो को मेंटेन करिए. क्या होता है, लेट अस कम टू दैट. देखिए, एज आई टोल्ड यू कि प्लांट नाइट्रेट नाइट्रोजन भी लेता है और अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन भी प्लांट लेता है, लेकिन दोनों को लेने का मैकेनिज्म अलग है. दोनों को लेने का मैकेनिज्म अलग है. नाउ व्हाट हैपेंस, जब हम नाइट्रेट फॉर्म में देते हैं, व्हेन वी गिव इट इन नाइट्रेट फॉर्म, ये प्लांट के पास चला जाता है सीधा लीव्स में, और लीव्स में जो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, वो इस नाइट्रेट को हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब करने.
नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करने के लिए शुगर्स की जरूरत, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए शुगर की जरूरत। और जैसे ये नाइट्रेट फॉर्म में आपने दिया, ये इट विल स्ट्रेट वे थ्रू रूट्स, इट विल गो टू द लीव्स, और लीव्स में इसको शुगर मिलता है, क्योंकि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं वहां से उनको शुगर मिलता है, वो शुगर वो अपने पत्तों में स्टोर करते हैं। तो नाइट्रेट फॉर्म में आपने दिया, इसका एब्जॉर्बिशन कैसे होता है, इट डायरेक्टली गोज इनटू द लीव्स एंड हियर इट कंबाइंस विद शुगर। इसको मिल गया शुगर और ये हजम हो गया, इस प्लांट ने इसको यूज कर लिया आपने। जो ओमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है वो पत्तों में डायरेक्टली नहीं जाते, वो पहले रूट्स में चला जाता है। इट्स एब्जॉर्बिशन टेक्स प्लेस इन रूट्स। जैसे ये रूट्स में चला गया, अब इसको एब्जॉर्ब करने के लिए पत्तों को ऊपर से शुगर भेजने पड़ते हैं, वो यहां से शुगर्स को भेजने पड़ते हैं। शुगर एक ताकत है प्लांट के लिए, ये हेजिटेंट रहता है इसको किसी और को देने के लिए, क्योंकि इसको खुद को यूज करना होता है। जब गर्मी का मौसम होता है, व्हेन इट इज हॉट वेदर, उस टाइम शुगर का अपना प्लांट अपनी बैलेंस मेंटेन करने के लिए शुगर्स को ज्यादा से ज्यादा देर तक अपने पास में रिटेन करता है, देता नहीं है। और जब वो गर्मी के मौसम में ऊपर से रिलीज ही नहीं करता है शुगर, तो ओमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो है वो रूट्स में पड़ा रहता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। दिस नॉर्मली हैपेंस इन हॉट वेदर्स। प्लांट्स डोंट रिलीज शुगर, they don't release sugar, so आपका जो अमोनियम है वो यहाँ पड़ा रहेगा। जैसे वो पड़ा रहेगा, it will get converted into nitrite। होना है इसको कन्वर्ट किस में, नाइट्रेट फॉर्म में, लेकिन ये हो जाएगा कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट, एंड नाइट्राइट्स आर पॉइजनस फॉर प्लांट्स। नाइट्राइट्स आर पॉइजनस फॉर प्लांट। इसलिए जब गर्मी का मौसम हो तो याद रखिएगा, जो आपका ओमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रेट फॉर्म का नाइट्रोजन का जो रेशो हो, वो उसमें ओमोनिकल फॉर्म बहुत कम होना चाहिए। और अगर सर्दी का मौसम है, ठंडा मौसम है, जब प्लांट को बहुत ज्यादा शुगर्स की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम आप अपना ओमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, उसका परसेंटेज आप बढ़ा सकते हो, उसका रेशो आप बढ़ा सकते हो। ये फंडामेंटल चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। एंड लेट मी रिपीट, लो टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, हायर नाइट्रेट ओमोनिकल रेशो। ज्यादा नाइट्रेट, इसमें आप ओमोनिकल जो रेशो है उसको ओमोनिया बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने अभी बोला, ये 85% करिए, ये 15% करिए। और जब लोअर टेम्परेचर्स हैं तो आपको यहाँ पे 95% नाइट्रेट फॉर्म में देना चाहिए और जस्ट 5% ओमोनिकल फॉर्म में देना चाहिए। दिस विल मेक ए फंडामेंटल चेंज टू द प्लांट फिजियोलॉजी। ये प्लांट में एक अलग ही शक्ति लाएगा, क्योंकि आप उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हो जिसको प्लांट फॉलो करना चाहता है। यू आर क्रिएटिंग ए मैकेनिज्म दैट सूट्स प्लांट। अगर आप इस रेशो को मेंटेन नहीं करोगे, then what are you doing? You are changing the mechanism. You are creating a mechanism and asking plant to get adjusted. That plant is hesitant to do when the temperatures are higher. So higher temperatures, lower ommonical ratio, and higher lower temperatures, higher ommonical ratio will do. Sorry, lower temperature, higher ommonical ratios, and higher temperature, lower ommonical ratios should be there. और इसका क्या फर्क पड़ता है और फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखिए, जब प्लांट, कोई भी प्लांट, जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वाटर इनसाइड द प्लांट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और दोनों को मिक्स करके उसमें शुगर बनती है। और शुगर ब्रेकअप करता है प्लांट अपने खाना खाने के लिए। जब उसको ब्रेक करता है तो उसके पास में कुछ आयन रहते हैं, उसमें ON नेगेटिव आयंस होते हैं और कुछ हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये याद रखना चाहिए कि प्लांट्स ऑलवेज मेंटेन आयनिक बैलेंस। उसका मतलब है किसी भी प्लांट में जितने हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही उसके पास में हाइड्रोक्सी के नेगेटिव आयंस होंगे। ये बैलेंस प्लांट के लिए मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ अगले स्लाइड में। जैसे if nutrients are treasure, pH is key to treasure. pH, power of hydrogen, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे मैंने आपको बोला, एक तो आपको जब फॉर्मुलेशन आप बनाएंगे तो उसमें प्रॉपर रेशियोज होने चाहिए, और उसके बाद में सेकंड थिंग इज प्रॉपर pH हैज टू बी देयर। प्रॉपर pH हैज टू बी देयर। आप ये देखिए, ये pH का चार्ट है। सॉइल में आप कर रहे हैं तो गुड pH is 6.2 to 6.8,
एंड हाइड्रोपोनिक में करते हैं तो 5.4 से 6.5 इज द बेस्ट पीएच। और इस पीएच पे यू कैन नोट डाउन कि सारे यहाँ पे सारे इनका जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है इस पे 6.5 इस रेंज में, न्यूट्रिएंट्स विल बी टेकन अप बाय द प्लांट। इसलिए पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये एक अगेन इस वेबिनार में पीएच को कंप्लीटली आपको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई एम वेरी श्योर इन फ्यूचर आई विल डिस्कस दीज थिंग्स मोर इन डिटेल विद यू। लेकिन इतना आप समझ लीजिएगा यहाँ पे कि हाइड्रोपोनिक्स में करना है तो योर पीएच हैज टू बी 5.4 to 6.5, एंड अगर आपको सॉइल बेस करना है तो इट हैज टू बी 6.2 to 6.8। क्यों हमको इसमें रखना चाहिए कि अगर लो पीएच हो जाए तो ये जो आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड कॉपर है ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट के पास चले जाए। लोअर पीएच पे इनका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, और जैसे ये बहुत ज्यादा चले गए तो टॉक्सिसिटी आ जाएगी प्लांट में। और हाई पीएच अगर है तो इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होएगा, ये इनकी डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो आपके प्लांट में अगर आपको कभी आयरन की डेफिशिएंसी लगती है तो मत सोचिएगा कि आयरन की डेफिशिएंसी है, मैं इसमें आयरन दूं, मैंने आयरन नहीं दिया है। नहीं, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए क्या मेरा पीएच बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया है। अगर पीएच ज्यादा हो गया है तो आयरन देने के बावजूद भी वो आयरन प्लांट नहीं लेगा। सो व्हेनेवर यू सी अ डेफिशिएंसी इन योर प्लांट, try to check the pH firstly and make sure that your pH is proper. If your pH is not proper, set it right. Once you set it right, absorption of nutrients will automatically take place. But if it is not right, even if you increase the quantity, even if you decrease the quantity of whatever adjustments you do, it's not going to help in absorption to the plant. It's not going to help. So whenever high pH is there, deficiencies of micronutrients are bound to be there. And whenever low pH is there, the toxicity of micronutrients is bound to be there. और ऐसे ही low pH पे कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आ जाएगी। NH4 बहुत सेंसिटिव रहता है लो पीएच पे। PO4 फास्फोरस जो है वो लॉक हो जाता है लो पीएच पे, एंड इट गेट्स लीच्ड आउट। लीच आउट मतलब आपने पानी दिया, पानी नीचे से अगर उस गमले से निकल गया तो वो अपने साथ फास्फोरस भी निकाल के ले जाएगा। और अगर पीएच प्रॉपर है तो वो लीच नहीं होएगा, वो वहीं स्टे करेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। Then one slide I would like to tell you EC का बारे में बहुत शोर हम करते हैं, लेकिन होता क्या है EC? हम हमेशा बोलते हैं लो EC, हाई EC। EC से क्या फर्क पड़ता है प्लांट के ऊपर? मैं एक छोटी सी मिसाल में आपको दूंगा। हाई EC का मतलब है पानी का फ्लो टुवर्ड्स द प्लांट विल रिड्यूस, पानी जो प्लांट लेगा वो कम हो जाएगा। और लो EC का मतलब है कि पानी जो प्लांट की तरफ जाएगा वो ज्यादा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तीन सोल्यूशंस है। यहाँ पे एक EC4 है, यहाँ EC2 है, यहाँ EC8 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस फ्लो, 4 है, इट इज हायर, थोड़ा सा लेस फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स द प्लांट। EC2 है, मोर फ्लो ऑफ वाटर टू द प्लांट। और EC8 है, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द प्लांट। अगर 8 EC का पानी आपने हायर EC का दिया तो प्लांट के अंदर का जो पानी है उसका EC अगर लो है तो वही पानी बाहर निकलेगा, वो पानी। That is why हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे पानी का EC लो होना चाहिए, एंड इवन हमारे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन का भी EC बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सो दैट कि प्रॉपर फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स प्लांट इज देयर। नाउ वो जो मैंने आपको नाइट्रेट रेशो, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ये सब चीजें जो मैंने आपको बोली, ये आयनिक बैलेंस जो मैंने आपको बोली, इनका इंपॉर्टेंस क्या है? एक सिंपल स्लाइड से मैं आपको ये समझाऊंगा इनका इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे ये काम करे। अगेन लेट मी टेल यू, शायद साइंटिफिकली ये बहुत करेक्ट नहीं हो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन एग्री एंटरप्रेन्योर, दिस इज 100% एप्लीकेबल। This is 100% applicable to all of us who are into commercial cultivation. This is purely out of my 40 years of experience, I am telling you. So please focus and try to understand what I am trying to tell you. Look at this slide. You have a plant. It has root. एक plant आप देख रहे हो और उसकी root आप देख रहे हो। अब मैंने आपको बोला plant में positive hydrogen ions होते हैं और negative hydroxy ions होते हैं। ये plant की currency है, आप मान लीजिए।
ये प्लांट का पैसा है, और ये पैसा उसके पास बराबर होता है, जितने हाइड्रोजन के आयंस होंगे उतने ही हाइड्रोक्सी के भी आयंस होंगे, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, जब प्लांट पॉजिटिव आयंस, हमने न्यूट्रिएंट्स की जब बात करी तो हमने उस पर बोला कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं। अब जब ये पॉजिटिव आयंस लेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे इस प्लांट ने पॉजिटिव आयंस लेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये कम है तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, ये इम्बैलेंस प्लांट करेगा नहीं, इसलिए जितने ये पॉजिटिव आयंस लेगा उतने ये हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस रिलीज भी करेगा, ये रिलीज भी करेगा। ये रिलीज कहां करेगा, रूट जोन में। ऐसे ही जब ये नेगेटिव आयंस ऊपर को लेगा तो ये नेगेटिव आयंस रिलीज भी करेगा, या OH के आयंस रिलीज करेगा, और अपनी जो इसकी बैलेंस है पॉजिटिव आयंस की और नेगेटिव आयंस की उसको मेंटेन करेगा। ये फर्स्ट फंडामेंटल है प्लांट अपटेक कैसे करता है, क्या प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व रहता है। वो पॉजिटिव आयंस लेगा तो पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, वो नेगेटिव आयंस लेगा तो वो नेगेटिव आयंस को रिलीज करेगा, ताकि वो बैलेंस रहे आपस में। नाउ इमेजिन हमने इसको खाद दिया, वी हैव प्रिपेयर्ड अ फर्टिलाइजर फॉर्मुलेशन, वो दिया, उसमें नाइट्रोजन हमने दिया, पोटेशियम दिया, कैल्शियम दिया, मैग्नीशियम दिया, आयरन दिया, मैग्नीज दिया, बोरॉन दिया, कॉपर दिया, जिंक दिया, बिडिनियम दिया। और आपने अगर याद होगा पहले जो मैंने आपको चार्ट बोला था, मैंने बोला ये सब पॉजिटिव आयंस, दीज आर ऑल पॉजिटिव आयंस। ये जो प्लांट लेगा तो वो वहां से पॉजिटिव आयंस ही रिलीज करेगा। अब आप मान लो कि ये पॉजिटिव आयंस एन, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब प्लांट ने ले लिया ऊपर। जैसे इसने ये ले लिया, अपनी बैलेंस मेंटेन करने के लिए व्हाट इट विल डू, इट विल रिलीज पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस इन द रूट जोन। और जैसे आपने पॉजिटिव आयंस दिए, इसने पॉजिटिव आयंस रूट जोन में रिलीज करे तो आपका जो पीएच है इधर वो बढ़ जाएगा। तो पीएच, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो जाएंगे तो पीएच आपका बढ़ जाएगा। नाउ इमेजिन जब हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, 9 आइटम जो उसमें है वो पॉजिटिव है, और दो ही आइटम हमारे पास में फास्फोरस और सल्फर है जो नेगेटिव है। और जैसे हमने उन नेगेटिव को दिया तो ये क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोक्सी नेगेटिव आयंस रिलीज कर देगा रूट जोन में। नाउ द इम्बैलेंस हैज स्टार्टेड। अब रूट जोन का इम्बैलेंस शुरू हो गया। इतने सारे इसने हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस रिलीज करे और सिर्फ 2 हाइड्रोक्सी के आयंस रिलीज करे, तो आपका पीएच ड्रिफ्ट हो जाएगा। ये पीएच जो आपने मेंटेन करा हुआ है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैज इंक्रीज। नाउ यहां पे क्वेश्चन है हाउ टू बैलेंस इट। इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए एक सही तरीका जो हमारे पास में है वो है कि हमारे पास में नाइट्रोजन जो है वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे को पॉजिटिव भी अवेलेबल है और नेगेटिव भी अवेलेबल है। मैंने आपको बोला NO3 इज नाइट्रेट, इट इज नेगेटिव नाइट्रोजन, एंड NH4 इज पॉजिटिव नाइट्रोजन। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग नाइट्रोजन इन पॉजिटिव फॉर्म, इसलिए यहां से टोटल नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है, सो इट विल कीप ऑन रिलीजिंग हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। जब मैं आपको बोलता हूं एक अच्छा रेशियो मेंटेन करिए, तो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन नेगेटिव फॉर्म में दे दीजिए। तो जब हम नेगेटिव फॉर्म में नाइट्रोजन NO3 यूज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये NO3, ये बार बार NO3 नाइट्रोजन जो जाएगा ये नेगेटिव फॉर्म में जब प्लांट के पास में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल रिलीज मोर हाइड्रोक्सी आयंस। और उससे क्या हो जाएगा, जितने इसने हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस रिलीज करे उतने ही ये हाइड्रोक्सी के नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा, और रूट जोन में आपके एक बैलेंस विल बी मेंटेन, और आपका पीएच जो है ड्रिफ्ट नहीं हो जाएगा। इसलिए द रेशियो ऑफ पॉजिटिव नाइट्रोजन एंड नेगेटिव नाइट्रोजन इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। अदरवाइज अगर आपने एक ही टाइप का नाइट्रोजन दिया, पॉजिटिव नाइट्रोजन बहुत ज्यादा दिया, तो आपका जो पीएच है वो बार बार ड्रिफ्ट हो जाएगा, और जैसे पीएच आपका ड्रिफ्ट हो जाएगा, आपका जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है, ओवरऑल एब्जॉर्प्शन will get badly affected. That is why in hydroponic, in soilless media, you should always give most of nitrogen should be given in nitrate form, and that will help you in balancing the pH in the root zone.
हाउ टू मैनेज द ग्रोइंग मीडिया। ग्रोइंग मीडिया के बारे में आपको बताऊंगा कि जब हम नॉर्मली टीडीएस मीटर से टीडीएस को चेक करते हैं, जब एक फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं, हमको आइडिया होता है कौन सी चीज हमने इतनी डाली है, तो उस टाइम अगर हम टीडीएस मीटर यूज करेंगे इट इज फाइन। लेकिन जब वो रूट जोन में चला जाता है, वहां पे एक्शंस रिएक्शंस होती रहती हैं, then measuring the strength of a solution with the help of a TDS meter or with the help of an EC meter is absolutely ridiculous. उसके लिए if you are doing a good commercial project, you must have ion meters so that you check the individual concentration of all the elements in the root zone. That is the best way of doing it. आपको ion meter अलग अलग चाहिए, कैल्शियम का मीटर, क्लोराइड मीटर, पोटेशियम मीटर, ये अलग अलग चाहिए, ताकि रूट जोन में कौन सा न्यूट्रिएंट किस में अवेलेबल है वो आप मेजर कर सको। जब आप किसी ईसी मीटर से या टीडीएस मीटर से उसको मेजर करते हो, तो दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल सॉर्ट्स, इट डज नॉट इंडिकेट द इंडिविजुअल सॉर्ट। यहाँ पे थोड़ा सा कमर्शियल वालों को ये चीज कंसिडर करनी चाहिए, यूजिंग आयन मीटर्स रादर देन यूजिंग ए सिंगल टीडीएस मीटर। और रूट जोन को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर रूट जोन को देखने के लिए आपको ये 6 पैरामीटर्स हैं, ईसी, पीएच, सोडियम, क्लोराइड, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। इन चीजों को यहाँ मेजर करिए। ये जो स्लाइड पे आप देख रहे हैं, दिस इज आवर फर्टिगेशन टैंक। यहाँ से हम, ये सॉइललेस मीडिया है और ये एनएफटी का मैंने ट्राई किया है बनाने के लिए। यहाँ से हम इसको सोल्यूशन देते हैं, इसमें देते हैं। यहाँ पे भी चेक करिए और उसको रूट जोन में भी चेक करिए, इन पैरामीटर्स को, ईसी को, पीएच को, सोडियम को, क्लोराइड को, नाइट्रेट को और नाइट्राइट को चेक करिए ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड ऑन द एंड पॉइंट एज वेल। और फिर क्या एनालिसिस आपको करना चाहिए, पीएच का अगर आपको इंक्रीज दिखता है तो ऐड एसिड, आपको एसिड थोड़ा ऐड करना चाहिए, और इंक्रीज द अमोनिकल कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन। इफ यू इंक्रीज द अमोनिकल कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन, योर पीएच विल गेट रिड्यूस। अगर आपको स्कोप दिखता है कि मैं जो रेशियो यूज कर रहा हूं उसमें अभी मैं अमोनिकल कंटेंट बढ़ा सकता हूं, तो रादर देन एडिंग एसिड यू कैन ऐड अमोनिकल, यू कैन इंक्रीज द अमोनिकल नाइट्रोजन इन योर सॉल्यूशन टू बैलेंस द पीएच। अगर आपको ईसी में इंक्रीज दिखता है स्टार्टिंग पॉइंट और रूट जोन में, तो रिंस द मीडिया, प्लेन पानी चलाइए और रिंस करिए मीडिया को, उसको 2 डालिए ताकि उसमें जो एक्सेसिव सॉल्ट जमा हो गए हैं वो लीच आउट हो जाए। क्लोराइड अगर आपको ज्यादा दिखता है बियॉन्ड 50 ppm अगर आपको ज्यादा दिखता है वहां पे, तो रिंस द मीडिया में पानी चलाइए, अदरवाइज क्लोराइड आपके रूट्स को खा जाएगा, प्लांट के रूट्स को खा जाएगा। सोडियम अगर ये भी आपको 50 ppm से ऊपर आता है रूट जोन में, तो रिंस द मीडियम विद प्लेन वाटर से उसको रिंस करिए, सोडियम को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये प्लांट के लिए सोडियम एंड क्लोराइड बोथ आर पॉइजनस फॉर प्लांट। देन नाइट्रेट अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज दिखता है, सपोज आप नाइट्रेट दे रहे हैं 250 ppm का और वहां पे आपको 350 दिख रहा है रूट जोन में, और या आपको 200 दिख रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है तो यू कैन रिड्यूस द पीक। कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस नहीं करना, कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस नहीं करना है, यू कैन रिड्यूस द साइकिल्स ऑफ इरिगेशन, साइकिल्स ऑफ फर्टिगेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्टिगेशन को कम कर दीजिए अगर आपको वो ज्यादा दिख रहा है। और अगर कम दिख रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स है उसको इंक्रीज आप करिए। दिस इज हाउ यू शुड डू इट। एंड देन नाइट्राइट का मीटर अगर मिल जाए आपको कहीं, जो हम अमोनिकल सॉल्ट्स देते हैं, खास करके गर्मी के मौसम की बात होती है, जब पानी में भी ऑक्सीजन नहीं होता है और प्लांट भी शुगर्स को रिलीज नहीं करता है, तो ये जो अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है ये रूट जोन में पड़ा रहता है, and with the passage of time it gets converted into nitrite। और nitrite is highly poisonous। ये 10 ppm से भी ऊपर अगर चला गया तो ये आपके प्लांट के रूट को खत्म कर देगा, तबाह कर देगा। इसलिए मेक श्योर दैट देयर इज गुड ऑक्सीजन अवेलेबल इन योर dissolved oxygen in your irrigation water is good, and your ratio of ammonical form of nitrogen and nitrate form of nitrogen is proper, and you are maintaining a proper temperature both of water and of atmosphere. These are primarily factors जो आपको अपने root zone को manage करने के लिए हमेशा check करने चाहिए. You should always check it. I think this is it.
I'm not very sure whether I have been able to communicate, I have been able to carry my message forward, but still I thank you everyone. I thank you everyone who participated. I in person thank Sachin sir, Shivangi and other people who helped me in doing this presentation. And once again, let me tell you once again, any questions you have, do ask me. If you can ask them now, I will try to reply now. If otherwise, even if you have questions later on, do send me questions on my mail or on my WhatsApp. I will try to reply those to best of my capacity and capability. Thank you so much. See you soon. I hope Sachin sir will meet again very soon. Sure, sir. Sure, sir. It was a thank you very much for a very interesting and informative session. You have touched each and every aspect of the fundamentals. You have rightly informed, given knowledge to all our participants. You have rightly said that knowledge of fertilizer, chemistry, and maths are very important, and you have very rightly placed each and everything. Personally, I like all the stuff you have presented, and it's very informative for all our participants. It's a nice to be with you, and I will always like the people like you who support us, who guide us, and they give the knowledge to us. And once again, I'm very thankful to you for joining and sparing the valuable time with us. Thank you very much, Vimal sir. And before wrap up the session, I will request all the participants, those who have any question. Mr. Rajput is there who was raising his hand. So, Mr. Rajput, you can ask your question to Vimal sir. Raise my hand. I also have few questions for Mr. Vimal Kaul. Yeah. Please, sir. Please ask. So, Vimal sir, say for preparing hydroponic this nutrient mix, see there are industrial grade chemicals and then there are agricultural grade chemicals. Can we use industrial grade chemicals for making hydroponic nutrients? We can use, but there is absolutely no need to use industrial grade. Why should we use them? Agriculture grade, good quality branded fertilizers are very easily available. We should use fertilizer grades only. I only use fertilizer grades. No need of using one. Those are very expensive. Second thing is the size of the molecule matters a lot. There is always a possibility that laboratory grade chemicals can cause toxicity to your plants. The absorption will be higher. Always so not laboratory grade. Laboratory grade are very expensive. I mean, I'm talking about industrial grade chemicals. I will say no industrial grades, only fertilizer grades. Okay, and what is the reason? I mean, why should not? Why should not? The question is, why should we? If we have something which is fertilizer grade, we have to be very sure about the quality of the material, the inert part of it. There are so many, there can be so many reasons to avoid industrial grade. The applications are different. Here the applications are entirely different. I have never used industrial grade fertilizer chemicals. One more question. Fertilizer grade fertilizers, and they are doing well. So I have one more question. I mean, say how much error is acceptable, say for nutrients? I mean, say for example, if I'm preparing a hydroponic recipe which requires say 350 ppm concentration of say potassium. Okay. And if the I mean, I'm using raw chemicals, so my ultimate by after doing the math, it comes out to be say 330 instead of 340. Yeah. So is that acceptable? I mean, how much error is acceptable? 5 to 10% is acceptable. Doesn't matter. 5 to 10%, plus minus 5-10% is acceptable. You should not. We should more concentrate on the ratios, and while maintaining those ratios, if there isn't slight change in the quantity of fertilizer to be applied and concentrations,
exactly, this is always bound to happen. You can never and never arrive at a formulation which is exact, because you are taking different sources with different percentage of nutrients available in it. While calculating, there is always a possibility that instead of 300, you will arrive at 305, 310, but it doesn't matter. Okay. And sir, Thank you, sir. how does these, I mean, say there's something called a waste decomposer, which is used for open field cultivation. So are they Can you just repeat it? Can you just repeat it? So are you aware of the product called waste decomposer? Yes. So can we mix these with hydroponic say cultivation? I mean, say if we are talking about cocoa culture, say I'm growing my crop in cocoa peat. Is it a good idea, bad idea? I mean, will it affect my hydroponic nutrition? I think it's a bad idea. It's a bad idea, because whenever you will mix anything with the media, you have to be doubly sure the purpose of mixing that and the mechanism of action. If you are adding these decomposers and other things, this vermicompost and other things, for their active to be in the active form, there has to be some sort of a microbial activity in the root zone. But in absence of that, using those things is of no use. And when we do hydroponics, we don't expect, we expect our media to be very, very inert. Other than providing anchorage to the plant and holding water for a longer time, there is no other use of the media. No other use of the media. Everything that is to be given through the water. So mixing anything that needs microbial activity to act should be avoided. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Now I will take, by seeing the time, we are already run half an hour late by this webinar. So I will take the last question of this webinar from Shashwat Yogi. So, and I request all the participants that Vimal sir has already shared his mobile number and email ID in a chat. So I request all the participants to, if you have any query, any question related to today's webinar, please free to ask him on email and on his WhatsApp. So I will take the last question of Shashwat Yogi. Yogi sir, you can ask your question. Yogi sir, you can ask your question. Hello. Yeah, please ask your question. Yeah. Thank you also for this amazing presentation. I had a few questions. Yeah. But as we have seen through the presentation that you have used different kinds of hydroponic systems such as Dutch bucket and NFT. So my question is, which one is most easily manageable, and which one do you recommend for Delhi's weather? You are your good name? Shashwat Yogi, sir. Shashwat. Yeah. Shashwat, let me tell you one thing. Be very sure about one thing. These systems don't produce plants. Systems never produce a plant. Whether it's a Dutch bucket, it's an NFT channel, it's a grow bag, it's anything. These systems don't plant. The person who operates the system makes a plant to grow. These systems are basically delivery systems. They ensure the delivery of nutrients to the root zone in a very efficient manner. That is the role of a system. So expecting that if I put Dutch bucket system, it is easy to operate, and NFT, it is not easy to operate, or these systems will grow plants for me, that is not true. So if you are an hydroponic grower and if you want to learn the art of hydroponic, you can go to any system, you can install any system. But before you install a system, be sure that what crops you intend to grow, does the system suit those crops? That is one. Second thing is, do you know how to operate the system? It is not applicable, operating a system is not only applicable to the hydroponic system. Even when you put a greenhouse, do we know how to operate a greenhouse? Most of us, we don't know, let me tell you. Most of us don't know how to operate a greenhouse, and that is where the problem actually lies.
We are under the impression that by putting a system, by putting a greenhouse, we have put a magical box. Now we just need to put seeds, fertilizer, water, and things will happen. It does not happen that way. It does not happen that way. So all the systems are good, provided you know how to run them efficiently. And system of running them is more or less same. You have to be sure about all those parameters that I mentioned earlier. That is one. And second thing is there are two systems. One is open system. The other one is closed system. Open system, these grow bags and other things, these are all open system, wherein the excess of nutrition that is provided to the plant is drained off and it is allowed to waste. And the closed system like NFT or Dutch buckets, wherein any excess of nutrition is collected back, treated, tested, and then provided back to the plant. So I always quote that hydroponic systems are something like Swiggy. They are not responsible for the quality of the food. They will pick the food and drop it at your place. That same good food, it is not Swiggy's responsibility. Timely arrival, it is Swiggy's responsibility. Same way, hydroponic system, these are Swiggy's. They deliver things in proper time in the most efficient manner to the root zone of the plant. But the quality of the fertigation formulation you have made and the plant, the science about the plant physiology, will ultimately make things happen. No system. Best of the systems keep on failing. Sir, thank you very much on behalf of Indian Nurserymen Association for giving a very informative and interesting session. I know this topic of fundamentals of fertigation management will be very useful for all of us in future. And thank you very much, sir, for sparing your valuable time with Indian Nurserymen Association. So on behalf of Indian Nurserymen Association, I am thankful to you and all the participants, those that joined us. So thank you once again, and see you in the next webinar. Till then, have a great time. Have a great week ahead. So thank you very much. Bye-bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, sir. 90% संपून गेलं. देखा Okay.